A very good evening from Bharat, India. Thank you for being there with us, and thank you for being on this journey along with us for a very long time. I have not numbered the episode this time because I don't want to be episode number conscious. So that's why we are going ahead without any numerical numbers being given to episodes, because we want to continue this journey along with you for a very long time. And this journey is something which is very, very sweet and very, very important for all of us. Can you all hear me clearly? Sister, can you hear me clearly? Yes, we can hear you. Yes. Okay. So this journey started a couple of years back and it is still continuing. And the last episode number was 41 and this episode number is again 0. So there's always a beginning for something new. And I believe it's important for us to begin something every single time and not just drag along with old ideas and old beliefs. And that's why we have come up with a new episode this time. And today, 10th of September being a very important day, it is also a suicide prevention day, which is being celebrated, but the celebration word could be taken as a misnomer. And it's something which is very important that we need to understand that it is a very important day where a couple of days back in my own city, I heard a case of suicide and just a week, not even a week back, just a couple of days back. And suddenly this topic came up to being, and we decided, sister and myself, that we should go ahead with this topic on our Raj Yoga self-healing meditation channel to bring about light to people on the basis of, as we have mentioned, psychologically, biologically, spiritually, mentally, we have to understand what exactly is the reason, what is going on in everyone's mind who is taking that step, that drastic step, which is going to affect not just their life, but is going to have an effect on the whole family and even the society around them. So in the case which happened a couple of days back in our city, Darjeeling, the whole of society, the whole of people around that house were shocked and were affected, and they started thinking about their own children because the child was just 15 years old. So this is what we are seeing, that around 700 million, 700,000 souls are leaving their bodies because of suicide attempts. We are seeing death rate going very high every year. It's increasing day by day, especially in low and medium income group countries. It's more so. And we are also seeing that the suicide rate is mostly happening more towards women who are going through depression conditions, because women are more susceptible to depression condition. That's what WHO has mentioned. I was trying to explore the reasons why and find out more reasons. So it's more towards the age group of 15 to 29, and also especially women, and especially countries which are low and medium income countries. Now, these reasons can not just be put under the condition of finances, but there's certain other reasons which we're going to explore today. And to explore those reasons, we have with us a beautiful mind and a beautiful soul who has been there with us in the beginning of this journey of the opening of this channel, Raj Yoga self-healing meditation. She has been there as a support to us mentally, emotionally, always being in touch, even though she has a very busy schedule, a busy family life also. And I thank her from my heart. Sister, thank you so much, Sister Jyoti Mehta, for being with us again. And sister, you have been helping people all over around. And recently, I believe you're there in India. And you have been working as a counseling psychologist, as a gold medalist, and you have been working as a former chartered psychologist with British Psychological Society in United Kingdom, and QPR, suicide prevention. This is something which I was going through a couple of minutes back, and I believe this is something which has happened, which was a step taken in the United States, and this organization has been training millions of people so as to prevent any kind of suicidal attempts. So by, I believe, the complete meaning of QPR, which we'll learn through sister also. And it's something which is very close to CPR also. That's what I've learned, where you are going through a cardiopulmonary resuscitation.
So over here, it's totally different. It's something which is to do with a mental resuscitation of the human being, a very different thing. And we're going to explore those areas. We're going to understand what exactly is happening in this society of ours, in this country of ours, and also as a journal, the whole world, because sister has been working internationally, so she understands the condition of souls, condition of youth, condition of women everywhere. So sister, I won't take a lot of time. I'll just get on to you with the question of where exactly are we standing today? What is the condition of suicide rates and why are they happening? Please throw some light on this and take us ahead on this journey. On to you, sister. Thank you so much, Parampreet. I think that's very warm of you to welcome in that way. And it's just been a pleasure to be around throughout this. And I think the credit is yours, I think, for being so consistent and constantly being there and inspiring all of us to, keep up doing and learning and exploring ourselves. Thank you for this opportunity. And surely you deserve these words. So to throw light on, like you said, today is a World Suicide Prevention Day that we celebrate every year on the 10th of September. We'll look into it through a PPT, if that's all right. Just bear with me and I will share the screen. Please go ahead, sister. Okay, is that visible? Very much. Okay, thank you for confirming that. Sorry about that. Okay, something's happened on my laptop, but just let me know if you're not able to see it. All right, so very beautifully talked about how QPR is very similar to CPR. So the whole idea being that while, suicide is a topic or suicide prevention is a topic that needs to be dealt very, sensitively, we're also talking about how each one of us can actually contribute in this prevention. And that's where the QPR aspect comes in, wherein we're trying to learn about how to question, how to persuade and refer someone who may be feeling suicidal. And I have closely worked for a couple of last few years of my profession with people who've been in crisis. So today I've tried to put things together so that there's something that we can take back. हम अपने लिए भी कुछ ऐसा कर पाए and अगर हम notice करते हैं कि हमारे loved ones या आसपास कोई है जिनको हम मदद कर सकते हैं या जो suicidal feel कर रहे हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं. I've tried to put it together. I'm trying to be conscious of using both English and Hindi ताकि हम इस बारे में बेहतर बात कर पाए. Please, please. So let's go on to the next slide, and hopefully by the end we're talking about because when we talk about suicide हम बात करते हैं कि ये thoughts dark thoughts होते हैं, right? So hopefully by the end of today's talk or the discussion that we're having, we move towards the light or the better side. Like I said, I think outrightly शुरू में मैं ये बोलना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत sensitive topic है and काफी ओवरवेलमिंग हो सकता है बहुत लोगों के लिए. सो आई वुड वांट टू गिव अ हेड्स अप कि अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आज के टॉक में आप भले अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, अगर आप वल्नरेबल फील करते हैं, ओवरवेलम फील करते हैं, तो यू कैन जस्ट पॉज एंड रीच आउट फॉर हेल्प. यू डू नॉट हैव टू सिट थ्रू इट थ्रू आउट. एंड जब मैं रीच आउट की बात कर रही हूँ, आई जस्ट पुट few numbers here. ये सारे इंडिया में बेस्ड हैं हेल्पलाइंस and they do offer support. So you could call any of them and reach out for support. So when we look about our life in general, हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारे influencing factors होते हैं, right? सबसे पहला फैक्टर होता है हम खुद, राइट? जैसे मेरा फिजिकल हेल्थ कैसा है, अगर मैं बीमार रहूंगी या अगर कोई एलिमेंट या डिसऑर्डर डायग्नोस हो जाता है, जैसे समवन्स डायग्नोस्ड विद कैंसर या सो ऑन,
उसका असर हमारी लाइफ पे पड़ता है, राइट? जैसा फिजिकल, क्योंकि माइंड और बॉडी कनेक्टेड होते हैं, जैसे हमारा मेंटल वेलबींग है या इमोशनल वेलबींग है, उसके हिसाब से भी हमारे लाइफ में असर पड़ता है। हमारे एटीट्यूड्स क्या है, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, क्या मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचती हूँ, क्या मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल हूँ अपने लिए या किसी और के लिए, या मैं होपफुल रहती हूँ, या मैं एक्सेप्टेंस बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करती हूँ, या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ, एंड सो ऑन। जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम या एटीट्यूड है डेली लिविंग का, उस पे भी फर्क पड़ता है हमारी डेली लाइफ के ऊपर। एंड हमारा एज, जैसे आप सब अग्री करेंगे कि लाइफ इज वेरी डिफरेंट जब हम छोटे होते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं, देन वी ट्रांजिशन इनटू टीन एज, लाइफ कंप्लीटली चेंजेस, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स आने लग जाते हैं, एंड देन वी मूव टू अडल्टहुड, रोल्स चेंज होने लग जाते हैं, जॉब वर्क प्लेस टेक्स ओवर, यू नो, लुकिंग आफ्टर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर फैमिली इंक्रीजेस, and towards the end of it, when we grow older, things then work differently. तो हमारा age भी is an important factor in that, and gender also plays a huge role. जैसे भाई जी भी बता रहे थे कि certain चीजें would also depend on gender, ना? Certain factors makes us more susceptible for something or the other. अगर मैं women हूँ, तो शायद मेरे experiences completely अलग रहेंगे एक society में, अगर मैं मैन हूँ तो अलग रहेंगे, या अगर मैं क्वेयर कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, LGBTQ या ट्रांस जेंडर से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंसेस कंप्लीटली अलग रहेंगे, राइट? सो फर्स्ट फैक्टर वी लुकिंग एट इज मेरे खुद के जो डिस्पोज्ड है, या जो बायोलॉजिकल या मेरे इनेट जो फैक्टर्स है, राइट? सो वी आर ट्राइंग टू शो लाइट ऑन, जैसे हमने आज टॉपिक बात किया था कि वी आर नॉट लुकिंग एट one person individually या isolation में, because that's not possible, right? बहुत सारे factors होते हैं। सेकेंड फैक्टर जो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा, सेकेंड कैटेगरी वुड बी हमारे इमीडिएट एनवायरमेंट, राइट? हमारे रिलेशनशिप्स, वो रिलेशनशिप हमारे फ्रेंडशिप्स हो सकते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो सकते हैं, हमारे वर्क प्लेस पे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, एंड सो ऑन, राइट? सो आवर रिलेशनशिप्स आल्सो इन्फ्लुएंस हाउ वी लिव एवरी डे। हमारे क्या एजुकेशन है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, फाइनेंशियली इकोनॉमी, हमारे रिसोर्सेज क्या है फॉर एवरी डे इन टर्म्स ऑफ होम एंड लोकल कम्युनिटी में, विल आल्सो प्ले अ ह्यूज रोल और इम्पैक्ट आवर लाइफ। थर्ड एस्पेक्ट वुड बी लिटिल मोर ब्रॉडर, जैसे कि मेरा सोसाइटल नॉर्म्स क्या है जहां मैं रह रही हूँ, राइट? मेरे कल्चरल वैल्यूज क्या है, व्हिच वुड चेंज अक्रॉस कंट्रीज और स्टेट्स फॉर दैट मैटर ऑल्सो, राइट? क्या लॉज हैं जो नॉर्मलाइज करते हैं या पनिशेबल हैं, एंड सो ऑन, राइट? क्या पब्लिक सर्विसेज अवेलेबल हैं किसी एरिया में, रूरल, अर्बन, different states, different countries, and so on, right? And मेरा national security या basic stability क्या है, वो भी हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। सो अगर मेरी लाइफ को बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, लेट्स शिफ्ट टू व्हाट वुड अ गुड डे लुक लाइक फॉर मी, राइट? कुछ दिन हम अच्छा महसूस करते हैं, राइट? इट्स अ गुड डे, समवन आस्क्स अस। उस दिन क्या होता है, वी आर रियली एक्साइटेड, हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बात करना हमें पसंद होता है, वी स्पेंड टाइम विद देम, वी आर रियली एक्साइटेड, वी आर मोटिवेटेड, कोई भी चैलेंज आता है तो वी आर रेडी टू टेक इट हेड ऑन, राइट? वी फील दैट एनर्जी, वी फील जॉय इन दैट डे, राइट? एक हैप्पीनेस हम फील करते हैं, एक कॉन्फिडेंस रहता है और एक अश्योरेंस रहता है कि आज का दिन अच्छा है, एंड आई विल बी एबल टू डू थिंग्स, आई विल बी एबल टू अचीव माय टास्क्स फॉर द डे। एक सेंस ऑफ सब ठीक चल रहा है, सब अच्छा गया आज रहता है, राइट? एट द सेम टाइम लाइफ में गुड डेज के साथ साथ बैड डेज भी आएंगे, सो बैड डे क्या होगा, प्रॉबेबली उस दिन थोड़ा नेगेटिव फील होगा, हमें लगेगा कि मैं बेटर कर सकता था या कर सकती थी, बट मैंने नहीं किया। कभी कभी हम अपने आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हैं, हमें लगता है कि शायद मैं हमेशा ही फेल फेल होंगी या मुझे ये कभी नहीं आएगा, राइट? हम अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं कि मेरी ही गलती रही होगी आज, एंड मैं ही एफर्ट्स नहीं कर रही हूँ,
and we keep this loop goes on that day, right? जब लूप चलता है तो दो चीजें होती है। एक तो कभी कभी हम उस जो एक्चुअली ट्रिगर शायद छोटा होता है एंड उसको हम सोच सोच के बड़ा कर देते हैं एंड वी स्लाइटली स्टार्ट डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक। हम प्रॉब्लम को साइड में छोड़ के हमने ही ओवर थिंकिंग का बहुत बड़ा लूप बना लिया होता है। या फिर समटाइम्स दूसरा चीज ये भी हो सकता है इग्नोरिंग द प्रॉब्लम में कि क्योंकि हमारा डिफेंस नॉर्मल नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म रहेगा एंड वी ट्राई टू पुट थिंग्स ऑफ जो हमें ट्रिगर कर रहा है, राइट? सो वी ट्राई टू शट दैट डाउन। हम उस चीज को ही ब्लॉक करने लग जाते हैं। And then you will also sometimes find yourself कि we start a lot of wishful thinking, you know, we start thinking काश ऐसा नहीं होता, काश मैं वो क्लास में नहीं बोलती, काश मुझे पेरेंट्स बेटर सपोर्ट करते, राइट? सो अ लॉट ऑफ काश या विशफुल थिंकिंग उस दिन शायद हम इंगेज करते हैं एंड ग्रेजुअली हम देखते हैं कि हम धीरे धीरे लोगों से आइसोलेट होने लगते हैं। हमें नहीं मजा आता है किसी से इंटरेक्ट करना, हम अपने कमरे में बैठना पसंद करते हैं, हमें कोई पूछता भी है तो हम शायद इरिटेट हो जाते हैं, राइट? सो एंड ग्रेजुअली कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वी माइट हिट दैट पॉइंट जहां हमें होपलेस भी फील होने लगे, हमें लगे कि इट्स जस्ट नॉट गोइंग द राइट वे, ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, या आई डिड नॉट थिंक कि ऐसा रहेगा सिचुएशन आज का, राइट? स्कूल का दिन ऐसा रहेगा, वर्क प्लेस पे ऐसा होएगा, मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा फॉर माई हार्ड वर्क एंड सो ऑन, राइट? हम शायद उस पॉइंट पे अपने आप को देख सकते हैं जहां पे हमें लगे कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ लिविंग, ओके, देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग एफर्ट्स। अब लाइक आई सेड, लाइफ में कुछ बैड डेज भी आएंगे और थोड़े गुड डेज भी आते हैं, बट जब बैड डेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं और कंटिन्यूस रहते हैं तो बहुत नेचुरल है कि वी वुड सी फ्यू रेड फ्लैग्स, राइट? एंड आई होप आज के सेशन से हम ऑल्सो इस स्पेस में, इस सेक्शन में थोड़ा रिफ्लेक्ट कर पाए कि क्या हम अपनी लाइफ में ये इनमें से कोई भी रेड फ्लैग्स देख रहे हैं क्या, राइट? सो जब ये बैड डेज कंटिन्यूस रहता है, यू मे फील कि आपका स्लीप पैटर्न चेंज होने लगा है, राइट? नाउ दिस कुड बी ओवर स्लीपिंग और इट कुड बी इंसोम्निया। शायद हम बेड ही नहीं छोड़ पाएंगे, हम शायद बहुत सारे घंटे लगातार सो रहे हैं, या फिर हमें नींद नहीं आ रही है, रात में बहुत लेट सो रहे हैं, या सो के आंख खुल जाती है और वापस नींद नहीं आती है, राइट? सो ये अगर कपल ऑफ डेज के लिए चल रहा है, सो दिस इज अ रेड फ्लैग। एक्सक्यूज मी। दूसरा रेड फ्लैग इज चेंज इन एपेटाइट। या तो हम बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करने लग जा रहे हैं और हमने अपना वेट गेन नोटिस करते हैं, या फिर हम स्किप करने लग जाते हैं मील्स जहां पे हम वेट लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट? हमें बिल्कुल भूख नहीं लग रही, हमें बिल्कुल खाने का मन नहीं हो रहा है, या हम जो नेचुरली जो रूटीन में खाते थे उससे ज्यादा खाते जा रहे हैं, राइट? सो दैट कुड बी अ रेड फ्लैग। क्योंकि बहुत कुछ हो रहा होता है, समटाइम्स यू वुड आल्सो फील कि मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है फिजिकली, बट फिर भी मुझे एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, राइट? आई फील फिटीग्ड, आई फील थकावट, है ना? तो दैट कुड बी आल्सो अ रेड फ्लैग टू लुक आउट फॉर। लॉस ऑफ इंटरेस्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग सिम्टम जो आप शायद रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। दिस वुड मीन कि जो चीजें आपको पहले बहुत पसंद थी, अब आपको मन नहीं करता है वो करने का, राइट? सो यू माइट थिंक कि पहले मुझे म्यूजिक बहुत पसंद था, हारमोनियम बजाना बहुत पसंद था, बट नाउ आई डोंट लाइक डूइंग इट, या मेरे में वो एनर्जी नहीं है टू परस्यू इट फर्दर, राइट? या फिर पहले मैं क्लास में बहुत पार्टिसिपेटिव था, मैं बात करता था, मैं क्वेश्चंस पूछता था या पूछती थी, बट अब मैं नहीं पूछती, राइट? अभी आई डोंट हैव द इंटरेस्ट इन डूइंग थिंग्स, राइट? अगर आप ये डिफरेंस देखते हैं अपनी लाइफ में या आपके आसपास में किसी के, सो दिस कुड आल्सो बी अ रेड फ्लैग टू वॉच आउट फॉर। एक कंटिन्यूअस लो मूड अगर आप फील कर रहे हैं, बहुत सारे दिन हो गए हैं, कंटिन्यूअसली सैड लग रहा है, ओवरवेल्म्ड लग रहा है, आप देख रहे हैं कि आप कंटिन्यूअसली काफी दिनों से रो रहे हैं, क्राइंग, देयर इज अ लॉट ऑफ लो मूड अगर आप नोटिस करते हैं, दैट वुड बी समथिंग दैट वुड नीड योर अटेंशन। Now we're talking about some little bigger red flags, which is hopeless. कभी कभी हमें ऐसा लगेगा कि there's no bright future. Future will not change. Future ऐसा ही रहेगा और जिस परिस्थिति में मैं हूँ उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, राइट? सो अगर हमें
होपलेस फील होता है, दैट इज अ रेड फ्लैग. अगर हमें वर्थलेस फील होता है, जहां हम ये सोचते हैं कि मेरे में कोई कैपेसिटी नहीं, मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं फेलियर हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरा कोई वैल्यू नहीं है, राइट. अगर हम वर्थलेस फील कर रहे हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट रेड फ्लैग है. अगर हम हेल्पलेस फील कर रहे हैं, अगर हमें लगता है कि कोई पॉइंट नहीं है किसी को बताने का, क्योंकि कोई कोई या तो ना तो कोई मदद कर पाएगा और ना ही उनकी मदद से मेरी चीजें बदलेंगी, राइट. तो अगर हमें हेल्पलेस फील हो रहा है, ये तीनों चीजें बहुत इम्पोर्टेंट रेड फ्लैग्स हैं जो अननोटिस्ड नहीं जानी चाहिए. लाइक अर्लियर, जितना अर्ली हम इंटरव्यू स्पॉट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उतना ही अर्ली हम इंटरवीन कर पाएंगे और बेटर कर पाएंगे सिचुएशन को. कभी कभी साइकोटिक सिम्टम्स भी फील हो सकते हैं जब वी हैव अ कपल ऑफ लॉन्ग यू नो क्रोनिक बैड डेज, जहाँ पे साइकोटिक सिम्टम्स वुड बी लाइक जब आप रियलिटी से दूर होने लग गए हैं, राइट. कभी डिल्यूजन्स या हेल्यूसिनेशंस, पैरानोया, जहाँ पे शायद कोई आपके पास एविडेंस नहीं है रियलिटी का, बट आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि रियल में कोई मुझे कुछ कह रहा है या फिर मैं खुद दिमाग से सोच रहा हूँ, राइट. सो कभी कभी साइकोटिक सिम्टम्स भी नोटिस किए जा सकते हैं. एंड कभी कभी व्हेन देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन, बहुत नेचुरल है कि देन आवर ब्रेन स्टार्ट्स टू थिंक कि कोई देयर इज नो पॉइंट ऑफ लिविंग, राइट, एंड आई मस्ट एंड दिस पेन. एंड यू मे ऑल्सो एक्सपीरियंस सुसाइड थॉट्स. एंड अगर आप सुसाइडल थॉट्स खुद उस मोमेंट में फील कर रहे हैं या कोई और आपके पास आसपास फील कर रहा है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आप अकेले नहीं हैं, and this is not the end of the story, right. And that is why we've gotten here together, जहाँ पे we talk about today we're going to talk about कि क्या क्या suicide prevention के लिए हम क्या कर सकते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए, and how what to look out for, कैसे मुझे पता लगेगा, what would be the signs जिनको मैं watch out कर सकती हूँ, right. So बिफोर वी गेट इनटू मैं क्या नोटिस करूं, लेट्स आल्सो थिंक अबाउट हम बात ही क्यों कर रहे हैं इसकी. लाइक व्हाट्स, आई मीन वी अंडरस्टैंड कि आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, 10 सितंबर है, बट इसकी नीड क्यों है आज बात करने की. ये सारे फैक्ट्स थोड़े ओवरवेलमिंग और शॉकिंग हो सकते हैं, बट आई थिंक आई हैव पुट इट टुगेदर टू एक्चुअली पुट आउट, ताकि हम एक्नॉलेज करें कि ये प्रेसिंग कंसर्न क्यों है आज, राइट. सो इंडिया रिपोर्ट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड डेथ्स इन द वर्ल्ड. 2021 की स्टडी में पाया था कि इंडिया में अक्रॉस द वर्ल्ड सबसे ज्यादा सुसाइड डेथ रेट है. नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स ब्यूरो ये कहती है, एनसीआर भी ये कहती है कि, and this is back in 2021, that over 1.5 lakh people died by suicide, and that has increased from the previous year, like how Paramji was also indicating that there has been a rise in these numbers, and which actually means there are about 20 suicides every hour, which is about over 450 suicides every day. So आज जब हम 1 घंटे में बात कर रहे हैं, इंडिया में around 20 लोगों ने they would have died by suicide. So that's the number that we're talking about. Also एक interesting study ये बताती है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन से कि जो लोग डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, वो 20 टाइम्स वल्नरेबल हो जाते हैं सुसाइड फील करने के लिए. एंड जब हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, this is back in 2017, wherein the WHO report said कि there are over around 200 million people in India that may suffer depression at some point in life, which means 1 in 5 people, right? So first of all, this is ये 2017 का record है, right? We are in 2023 today. Secondly, 1 in 5 people in India is almost 1 in every family, right? Which means at some point in life, आपकी फैमिली में एटलीस्ट एक जने को डिप्रेशन एक्सपीरियंस या फील हो सकता है. एंड जब उन्हें वो फील होगा, तब वो सुसाइडल
फील करने के लिए 20 times वल्नरेबल हो जाएंगे, राइट, एंड दैट कुड इंक्लूड योर सेल्फ ऑल्सो। एंड जैसे थोड़े और स्टैटिस्टिक्स आई वुड वांट टू हाईलाइट कि सबसे ज्यादा सुसाइड अटेम्प्ट्स 15 से 25 ईयर ओल्ड के बीच होते हैं, या फिर 65 एंड अबव के होते हैं। तो अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स इस एज ग्रुप में आते हैं तो you know this probably needs more attention and you can look out for them. There's another study which says every day 36 students die by suicide in India, right? So that's also a huge number when we're talking about only students जो enrolled हैं for education. And we also want to also acknowledge that ये जो reporting है ये सिर्फ वही numbers दिख रहे हैं जिन्होंने report किया है, right? A lot of them also go unreported, but even then the statistics are very alarming. But the good news is that suicide actually is the most preventable form of death. जिस कारण से जैसे भाई जी ने बोला हम शरीर छोड़ सकते हैं या we die, सबसे preventable form actually ये है, and that is why if we spot that someone's feeling suicidal, उनकी जान बच सकती है, right? So these facts are essentially highlighting कि क्यों important है हम इस बारे में बात करें। And I hope आज के सेशन में, क्योंकि आप हमें इतना टाइम दे रहे हैं, एटलीस्ट आप ऐसी एक दो चीजें सीख के जाएं जिससे आप अपने लिए भी वॉच आउट कर सके और किसी को हेल्प भी ऑफर कर सके। तो एग्जैक्टली सुसाइड क्या है? सुसाइड इज एसेंशियली अ सेल्फ डायरेक्टेड इंजरी, राइट, जहां आप चूज कर रहे हैं एंड अपने आप को हार्म करने के लिए, एंड आपका इंटेंशन डेथ है, राइट, यू वांट टू हार्म योरसेल्फ एंड डाई। सुसाइड अटेम्प्ट वो रहेगा जहां आपका इंटेंशन हार्म करने का था, however you've survived. Okay? Suicidal ideation is something जहां पे आपको या किसी और को थॉट्स हो सकते हैं suicidal, but not necessarily आपके पास प्लान हो या कोई ऐसे रिसोर्स हो या लीथल मीन्स हो। तो जब भी फ्री फ्लोटिंग suicidal थॉट्स कहीं आप पिक करते हैं या नोटिस करते हैं, तो बहुत जरूरी है उनसे पूछें कि दे हैव एनी प्लान और इफ दे हैव थिंग्स विद व्हिच दे कैन हार्म देमसेल्व्स, किसी चीज से नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या, बिकॉज दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ इट। ओके, एंड एक इम्पोर्टेंट क्रिटिकल फैक्टर है जो मैं आगे नेक्स्ट बताना चाहती हूँ, व्हिच इज कॉल्ड द सुसाइडल क्राइसिस का ड्यूरेशन, राइट। सर स्टडी ये कहती है कि देयर इज दिस अक्यूट हाइटेंड पीरियड ऑफ रिस्क जहां पे किसी को सुसाइडल थॉट आता है एंड वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट प्लान है और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। इस ड्यूरेशन को हम सुसाइड क्राइसिस कह रहे हैं, और कभी कभी ये सिर्फ थोड़े मिनट्स के लिए रहता है, राइट, विच गिव्स अस एनॉर्मस पावर कि अगर हम उन कुछ मिनटों को कहीं से या तो कोई इंटरवीन करते, राइट, या फिर हम कुछ डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स या खुद टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करते, तो हम एक्चुअली एक बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। We also talk about NSSI, which is non-suicidal self-injury, जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगा यहाँ बताना, क्योंकि इसमें हम ये डिफरेंशिएट करते हैं कि NSSI में भी हम अपने आप को हार्म करते हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन डेथ नहीं होता है, हमारा इंटेंशन उस इमोशनल पेन को रिलीव करना होता है। आप और मैं अग्री करेंगे कि बहुत हेल्दी कोपिंग नहीं है, एंड समटाइम्स इट कैन बी वेरी रिस्की, क्योंकि दिस कुड also turn into a suicide अगर ध्यान नहीं दिया जाए, but NSSI is different from suicide, right? So just for our awareness. एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जब मैं सुसाइड के साथ या सुसाइड प्रिवेंशन के साथ काम करती हूँ, एक ये आई थिंक प्रिवेलिंग थॉट है कम्युनिटीज में कि सुसाइड हमें सिर्फ एक फैक्टर दिखता है एंड वी थिंक दैट इज द कॉजिंग, राइट। हमें लगता है जैसे वी नो कि किसी को अच्छे मार्क्स नहीं आए एंड हेंस दे हैव हार्म देमसेल्व्स, राइट, या फिर किसी का दे हैव लॉस्ट अ जॉब
and then they have harmed themselves. But actually suicide is a very multifactorial causes होते हैं उसके लिए, right? There wouldn't be one reason. एक risk factor will not lead to harming yourself. There are a lot of things that are working in the background, right? So ये also highlight करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि इतनी छोटी सी बात थी, राइट, एंड हम पूरा इनवैलिडेट कर देते हैं उन इंसान की पेन को. बट लाइक आई सेड, आज हम आगे भी देखेंगे कि एक फैक्टर नहीं होता है, एंड दैट्स वेयर द होल बायोसाइकोसोशल या स्पिरिचुअल लेंस कम्स इनटू पिक्चर, राइट? सो कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स रह सकते हैं, कुछ जेनेटिक्स प्रीडिस्पोजिशन रह सकती है, सोशो कल्चरल फैक्टर रह सकते हैं, एक पर्टिकुलर सोसाइटी आपको एक तरीके से फील करा सकती है, या लैक ऑफ रिसोर्सेज हो सकते हैं जिसके कारण समवन मे डाई बाय सुसाइड. मेंटल हेल्थ कंडीशन हो सकती है किसी को जो अनडायग्नोस्ड गई हो या अनट्रीटेड गई हो. कोई लाइफस्टाइल कंसर्न्स हो सकते हैं, सब्सटेंस अब्यूज या एडिक्शन हो सकता है, नो प्रॉपर स्लीप हो सकता है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कोई सडन नेगेटिव एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस हो सकता है, जैसे इट कुड बी अ डिवोर्स, और इट कुड बी लूजिंग अ जॉब, लूजिंग अ लव्ड वन, इवन दैट कुड बी अ ट्रिगर. इंक्रीज एंड जब इंक्रीज्ड रिस्क फैक्टर रहेगा, राइट, आप वी विल टॉक अबाउट रिस्क फैक्टर्स आगे, और जब डिक्रीज्ड प्रोटेक्टिव फैक्टर रहेगा, राइट, तो जो रिस्क फैक्टर आपके बढ़ गए हैं पर जो आपको प्रोटेक्ट कर सकते थे वो कम हो गए हो, तो भी उस कारण से सुसाइड कोई अटेम्प्ट कर सकता है. इट्स ऑलवेज अ मल्टी फैक्टोरियल. लेट्स मूव ऑन टू, मैं कैसे जानूं कि कोई सुसाइडल फील कर रहा है, या मैं कैसे समझूं खुद भी कि मैं उस पाथ पे जा रही हूँ या जा रहा हूँ. okay? जैसे मैंने 3 रेड फ्लैग्स के बारे में कहा, अगर हम होपलेस फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, या वर्थलेस फील कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 क्राइटेरिया रेड फ्लैग्स हो सकते हैं. उसके अलावा अगर मैं नोटिस कर रही हूँ कि मैं बहुत दूर दूर रहने लग गई हूँ, मैं अकेले रहने लग गई हूँ, या कोई और एकदम से अकेला हो गया है, स्कूल आना बंद कर दिया है, जॉब पे एब्सेंटिज्म है, राइट, दैट कुड बी वन फैक्टर. सडनली बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया हो कोई, या फिर आपको ऐसे पता चले कि कोई लीथल मीन है वो, बहुत सारा अक्यूमुलेट करने लगे हैं, जैसे कोई मेडिसिन बहुत ज्यादा अक्यूमुलेट कर रहे हैं, एंड सो ऑन, दैट कुड बी अ वार्निंग साइन. कोई आपको कह रहा है कि मुझे लगता है मैं दूसरों पे बर्डन हूँ, राइट, मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं किसी को हेल्प नहीं कर रहा हूँ बट उन पे सिर्फ बर्डन ही हूँ. दैट कुड बी अ वार्निंग साइन टू पिक. बहुत ड्रास्टिक मूड या बिहेवियर में चेंज आप देखें, कोई इंसान बहुत फ्रीक्वेंटली डेथ की बात कर रहा है, अगर कोई आपको कह रहा है कि पता है समटाइम्स आई विश कि मैं सोऊं और जगूं ही नहीं कभी, दैट कुड बी अ वार्निंग साइन, राइट, वी हैव टू पिक दैट अप एज वेल. कभी कभी हमें लगता है कि जो बात कर रहा है वो सिर्फ अटेंशन मांग रहा है, बट आई थिंक एज अ साइकोलॉजिस्ट आई वुड एनकरेज कि इट्स ओके, स्टिल आस्क देम. अगर वो अटेंशन भी मांग रहे हैं तो आस्क देम वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, राइट, बिकॉज यूड रैदर आस्क, क्योंकि यहाँ पे एक लाइफ आप सेव कर सकते हैं. अगर आप नोटिस करते हैं किसी के आर्म्स पे कुछ कट मार्क्स हैं या फिर सो ऑन, राइट, सो वो भी एक वार्निंग साइन हो सकता है. कोई ऑलरेडी अपने इंपॉर्टेंट चीजें गिव अवे कर रहा हो, राइट, जैसे कि उनके जो इम्पोर्टेंट पोजेशंस हैं, या फिर ऑलरेडी प्लान बना रहे हो कि जब मैं मर जाऊं तो ऐसे करना या वैसे करना, राइट, या मेरी ये वाली बहुत कीमती चीज है आप रख लो, सो दैट कुड बी अ वार्निंग साइन एज वेल. Also, when we were talking about drastic change, it's also to highlight कि जैसे आप continuously देख रहे हैं कोई बहुत low feel कर रहा है and suddenly they're all happy, right? जैसे काफी बार suicide में आपने भी शायद सुना होगा जहाँ just before they die they've actually thrown a party, उन्होंने actually get together किया है family members के साथ, right? So basically if you notice कि continuously कोई बहुत struggle कर रहे थे and suddenly they feel okay, right? You can pick that up and ask. And we will learn about कैसे पूछना है, but that could be a warning sign that should go on our radar to go, beep beep, कुछ awkward है या something that I should intervene about. या फिर they are
कोई सब्सटेंस अब्यूज, बहुत बहुत ज्यादा अब्यूज, लीथल चीज यूज कर रहे हैं विदाउट making sure of their safety is something that you can pick. So अगर मैंने सुसाइड, तो अब वी आर गोना टॉक अबाउट कि सुसाइड अगर मैंने पिक कर लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ, राइट? व्हाट आर सम ऑफ द वेज दैट आई कैन हेल्प टू प्रिवेंट सुसाइड? we'll talk about this acronym called LUR ताकि हमें याद रहे. So the L stands for look out for signs, right? जैसे हमने पिछली स्लाइड पे देखा था. इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम वो साइंस पिक करें, क्योंकि WHO की स्टडी कहती है 10 में से 9 लोग जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या डाई करते हैं सुसाइड से, वो वार्निंग साइंस देते हैं. इट्स जस्ट आर इनएबिलिटी एंड आर अनअवेयरनेस कि हम पिक नहीं कर पाते हैं, राइट? सो इफ वी आर एजुकेटेड अबाउट क्या साइंस पिक करने हैं, 10 में से 9 लोग वो वार्निंग साइंस देते हैं बिफोर दे डाई, राइट? एंड लाइक आई सेड, अगर कोई कम्युनिकेट कर रहा है, गिव देम दैट अटेंशन. डोंट ट्राई टू से कुछ भी बोल रहे हो या ये तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं, राइट? यू वुड रैदर पिक दैट अप एंड टॉक अबाउट इट. E stands for empathy and listening, right? Like I said, ये बहुत sensitive topic है, right? It could mean a lot to, it could just trigger in different ways जो शायद आप imagine भी नहीं कर सकते हैं, right? So बहुत जरूरी है कि हम sensitively बात करें, हम compassionately बात करें, हम उनकी feelings को validate करें. ओके, अंतर रहता है बिहेवियर को वैलिडेट करना और फीलिंग को वैलिडेट करना, है ना? तो अगर अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हम बिहेवियर को वैलिडेट नहीं कर रहे हैं, बट जो उनकी फीलिंग है, शायद वो ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, शायद वो वल्नरेबल फील कर रहे हैं, शायद वो एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग जो है वो वैलिडेट करते हैं. मत कोशिश कीजिए फॉल्स प्रॉमिस देने के लिए, मत इमोशनल ब्लैकमेल डजंट वर्क. अ लॉट ऑफ टाइम्स हमें शायद हमारा इंटेंशन हेल्प करने का होता है एंड वी से ओ आप चले जाओगे तो आपके पेरेंट्स का क्या होगा या आपके बच्चों का क्या होगा, राइट? दैट पर्सन इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट. तो इमोशनल ब्लैकमेल कैन एक्चुअली बी अ ट्रिगर फॉर देम, राइट? सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग ये ऐसा क्यों कर रहे हो, राइट? या फिर आपके जाने के बाद क्या होगा, आपने कभी सोचा है उनके बारे में, राइट? दीज डोंट रियली हेल्प, राइट? वो ऑलरेडी बहुत कुछ डील कर रहे हैं, ट्राइंग टू पुश मोर बर्डन ऑन टू दैम. सो प्लीज अवॉइड डूइंग दैट, राइट? ऑल्सो देयर इज अ स्टडी, रिसेंट स्टडी जो कहती है कि टीनेजर्स ने बताया था जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था कि दे फेल्ट वेरी लोनली एंड दे विश्ड कि अगर उनके पास कोई होता जिनसे वो बात कर पाते, राइट? सो इवन इफ वी होल्ड दिस स्पेस, अगर आप किसी के लिए ये स्पेस भी अगर होल्ड कर पा रहे हैं, दैट वुड एक्चुअली सेव लाइव्स. द ए स्टैंड्स फॉर आस्क डायरेक्टली अबाउट द सुसाइड. बहुत ज्यादा मिथ्स हैं अराउंड द फैक्ट कि अगर मैं ये वर्ड बोलूंगी तो मैं प्रमोट करूंगी, मैं इम्प्लांट कर दूंगी किसी की में आइडिया. ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये मिथ है, ठीक है? जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आपको सर दर्द हो रहा है, इससे आपका सर दर्द शुरू नहीं हो सकता है. वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं या क्या आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, ये इम्प्लांट नहीं करता है, राइट? रैदर जब हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं तो हम जो टैबू है, जो स्टिग्मा है, उसे और इंक्रीज कर रहे हैं. और शायद अगर हम वो बात करेंगे तो एक स्पेस खुलेगा उन इंसान के पास ताकि वो ये बात कर पाए, राइट? क्योंकि शायद उनके लिए बहुत मुश्किल होगा आपके आपके सामने सुसाइड के बारे में बात करना. और जब हम बात कर रहे हैं तब इस तरीके से पूछेंगे जहां पे हम एक्चुअली ओपन एंडेडली पूछ रहे हैं, राइट? अगर अगर हम ऐसे पूछेंगे कि आप सुसाइड के बारे में तो नहीं सोच रहे, राइट? तो दिस इज अ वे जहां पे यू आर कम्युनिकेटिंग टू देम कि यू डोंट से यस, है ना? तो वो स्पेस हम नहीं क्रिएट कर पा रहे. सो वी आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड वी डू यूज द वर्ड सुसाइड, ओके? एंड जब हम पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं रेडी रहिए कि शायद वो हाँ भी बोल सकते हैं, राइट? सो बी ओके फॉर द फैक्ट कि कोई वो लेवल के इंटेंसिटी के थॉट्स भी आपके साथ शेयर करें, राइट? आस्किंग अबाउट इट विल नॉट कॉज इट. सो किस तरीके से पूछ सकते हैं? जैसे पहला पॉइंट कह रहा है कि टॉक टू देम अबाउट, लाइक
say it in a very honest way, right? Maybe tell them कि I notice कि आप काफी दिनों से लो फील कर रहे हैं, right? मैंने सुना आप उस दिन बोल रहे थे कि you wish आप कभी पैदा ही नहीं होते, या you wish आप अगले दिन उठते ही नहीं, right? Are you thinking about suicide? क्या आपने अपने आप कभी अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा है, right? So this could be the way to speak about it. जो QPR का Q है वो बेसिकली ये है how we ask the question. The R stands for remove the danger. अगर आप या आपको पता हो कि वो सुसाइडल फील कर रहे हैं, आसपास कोई लीथल मीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है उनसे पूछें। अगर वो बोलते हैं हाँ मैं सुसाइडल फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पूछिए अगर उनके पास प्लान है, अगर उनके पास उन्होंने कोई ऐसी चीज है जिनसे वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, एंड एनकरेज कीजिए कि वो उन चीजों से दूर हो जाए, राइट? रिसर्च कहती है कि रिमूविंग द एक्सेस टू लीथल मीन्स इज एक्चुअली बेस्ड ऑन रिसर्च, राइट? इट्स एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच, एंड लाइक आई सेड इट गोज बैक टू वो जो ड्यूरेशन, छोटा सा ड्यूरेशन होता है जहां हम बहुत हाइटेंड सुसाइडल क्राइसिस फील करते हैं। अगर हम अपने आप को डिस्टेंस कर लेते हैं लीथल मीन से, तो हम अपने आप को बेटर सेव कर सकते हैं या किसी और को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड द लास्ट N इज अबाउट द नेक्स्ट लेवल ऑफ केयर, है ना, जहां पे द होल आइडिया इज विच इज द P and R of QPR, जहां हम बात कर रहे हैं कि उनको परस्यूड करके रेफर की कर दीजिए, क्योंकि दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। पहली बात, अगर कोई सुसाइडल फील कर रहा है और अगर मैं उन्हें प्रोफेशनल केयर के लिए नहीं सीख कर रहा हूं, तो ये उनके लिए अनफेयर है, राइट? मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ रहा है और मैं ये सोचूं कि नहीं मैं खुद ही ट्रीट करूंगी, मैं इनको हॉस्पिटल नहीं ले जाऊंगी, राइट? सो ये उनके लिए अनफेयर है। दूसरी बात, अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं खुद ट्रीट करूंगी, ये आपके लिए भी अनफेयर है, क्योंकि शायद आप उस कैपेसिटी में नहीं होंगे, राइट? जरूरी नहीं है क्योंकि किसी ने अगर आपको बताया कि मैं सुसाइडल फील करूं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर चले जाए, राइट? आपका पूरा हक है, आपको पूरा राइट है दैट यू रीच आउट फॉर हेल्प एंड गेट देम टुगेदर टू अ प्रोफेशनल जो कि इसमें ट्रेंड है और उन्हें मदद कर पाएंगे, राइट? सो दोनों ही चीजें हैं। अगर आप हार्ट अटैक देखते हैं तो ऐसा भी मत करिए कि उनको हॉस्पिटल ना ले जाएं, और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको ही ट्रीट करना है। सिमिलरली मेंटल वेलबींग के लिए भी है, अगर कोई सुसाइडल फील कर रहा है, प्लीज रीच आउट टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, हेल्प देम। सुसाइड प्रिवेंशन ऑफ इंडिया फाउंडेशन एक ऐसी बॉडी है जहाँ की वेबसाइट पे आप उनका दे डू अ डायरेक्टरी जहाँ पे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट का क्राउड सोर्स लिस्ट है, आप वो एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी लोकल हॉस्पिटल इमरजेंसी में आप जा सकते हैं, आपको हेल्प मिल सकती है। आप कैसे हेल्प कर सकते हैं ये याद रख सकते हैं कि जरूरी नहीं है एक बार थेरेपी लेने का या साइकोथेरेपी लेने का मतलब ये है कि कंटिन्यूसली जाना पड़ेगा। अभी क्राइसिस इंटरवेंशन के लिए आप जा सकते हैं, यू कैन ऑलवेज चूज उसके बाद, राइट? सो अभी के लिए इट्स अ गुड आइडिया टू कनेक्ट दैम। आप कैसे मदद कर सकते हैं उनके बिहाफ पे, थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का क्या एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, उनको पहले से बता सकते हैं कि मेरे ये लव्ड वन है या फ्रेंड है एंड ये ऐसे फील कर रहे हैं, राइट? सो दैट इट हेल्प्स देम टू कम्युनिकेट बेटर। एक ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक स्टडी ये कहती है कि the fear of visiting a mental health professional is actually the only single most cause of why people who actually feel suicidal do not seek help at the right time. वो डर, वो ambiguity कि कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे, मुझे नहीं पता है, becomes one of the major reason why people are not able to get the help that they deserve, right? So you can play a huge role there. इसके अलावा हम दो एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। एक है क्राइसिस इंटरवेंशन, राइट? अगर कोई आपको बोलता है या आप खुद फील कर रहे हैं उस समय, अगर सुसाइडल फील कर रहे हैं, तो इमीडिएटली कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि हम CPR की बात करते हैं। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट है, अगर आप नोटिस करते हैं और आप वेट करते हैं एम्बुलेंस आएगी उसके बाद लेके जाएंगे, यू लूज क्रिटिकल इम्पोर्टेंट टाइम। वैसे ही अगर कोई बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड दिख रहा है, लाइक अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन आई वर्क विद क्लाइंट्स, अ लॉट ऑफ देम आर इन दैट स्पेस,
दे विल नॉट अंडर, वो कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के स्टेटमेंट नहीं होते हैं, राइट? सो उस समय हम, ये कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, and these would be the green flags that we'll start adding. So the first one is grounding technique. ठीक है? The idea is to stabilize, right? The idea is we are all over the place. बहुत सारे emotions हैं. We're trying to calm the person down. On the right side, you will see there are a lot of techniques to use कर सकते हैं. एक basic technique would be just simple deep breathing. अगर आप 10 deep breaths भी करते हैं, it gets your system to, how does it help? I'm going to say first, immediate distraction. Right? Remember the duration. अगर हमने immediately अपने आप को stabilize कर लिया उस समय, एक distraction हो सकता है. हमारे जो नेगेटिव थॉट्स के लूप हैं, पैटर्न्स हैं, वो इंटरप्ट हो जाते हैं जैसे हम स्टेबलाइज करते हैं. हमारा नर्वस सिस्टम थोड़ा काम हो जाता है, जिसकी वजह से हम बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकते हैं. क्योंकि जब भी हम इमोशनली हाइटेंड होते हैं, हमारा लॉजिकल साइड ऑफ द ब्रेन थोड़ा अफेक्ट होता है, राइट? सो इसलिए बोलते हैं गुस्से में पता नहीं क्या बोल दिया, राइट? सो जब भी इमोशंस हाइटेंड रहेंगे, लॉजिकल थिंकिंग अफेक्ट होती है. इसीलिए काम करना इज अ वेरी गुड आइडिया, सो दैट हम डिसीजन मेकिंग बेटर कर सकें. This also enhances our coping skill. It can be a very beautiful coping skill for a lot of us. सुसाइड वॉच बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप या किसी और को जिनको आप जानते हैं वो सुसाइडल फील कर रहे हैं, प्लीज उन्हें अकेला ना छोड़ें. ट्राई कि उनके नियर एंड डियर, अगर आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं है उस सिटी में या उनके घर के आसपास, प्लीज रीच आउट टू समवन जो फिजिकली उनके अराउंड हो, बिकॉज यू कैन नॉट कीप अ ट्रैक अक्रॉस डिफरेंट, वर्चुअली फॉर दैट मैटर. एनकरेज देम, जो भी लीथल मीन्स हैं, कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको दूर करने के लिए. अल्कोहल एंड ड्रग्स is one of the very important actually reason sometimes जहाँ पे when people जो suicidal feel कर रहे हैं and if they consume any substance, it really does not help them, and उसके बाद जो decisions होते हैं they're not very informed, right? So we want to make sure कि ऐसे अगर सब्सटेंसेस एक्सेसिबल हैं तो वो भी कंट्रोल में रहें. मेक श्योर उनके साथ कोई है, एंड स्पेशली एट द नाइट टाइम अगर आप उन पे चेक कर रख सकते हैं. अगर वो कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है, प्लीज एनकरेज कीजिए उन्हें वो मेडिकेशन लेने के लिए, बिकॉज दैट हेल्प्स देम स्टेबलाइज, राइट? Along with that, I think safety plan is a very important aspect जो I do a lot in my work. सेफ्टी प्लान क्या है? एज अ साइकोलॉजिस्ट शायद मैं आपके साथ उस 45 मिनट्स हूँ, 1 आवर हूँ, राइट? बट इवेंचुअली यू विल स्टेप आउट. तो आपके लिए कुछ, आपके पास ऐसे कुछ रिसोर्स होने चाहिए दैट यू कैन deal with things, and that's where safety plan comes into picture. So what we are trying to notice, we're trying to make a plan, we're trying to keep some record जहां से मैं पता लगा सकूं कि कुछ चीजें हैं जिससे मैं ट्रिगर हो सकती हूँ. अगर मुझे कोई जोर से बोलेगा इस समय तो शायद मैं ट्रिगर हो सकती हूँ, राइट? अगर मुझे हर्ट महसूस होगा तो मैं ट्रिगर हो सकती हूँ, राइट? सो नोट डाउन योर ट्रिगर्स, नोट डाउन कुछ डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स और सूदिंग टेक्निक्स, क्योंकि हर किसी के लिए डिफरेंटली होती हैं, राइट? फॉर मी डीप ब्रीदिंग माइट वर्क, for someone else maybe taking a walk may be a better distraction, right? So identify आपके लिए क्या better करता है, क्योंकि हम सब unique individual हैं, and हम सबके लिए different चीजें work better कर सकती हैं. कुछ internal coping strategy को भी identify कीजिए, जैसे कि ऐसी, क्योंकि अब तक अगर आपने सरवाइव किया है तो कुछ स्ट्रेंथ जरूर रही होंगी, राइट? आप कुछ कर रहे होंगे अपने लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए. तो आइडेंटिफाई कीजिए कि वो कोपिंग क्या है, क्या वो मेरा थॉट प्रोसेस है, क्या वो मेरी रेजिलियंसी है, क्या वो मेरी कुछ चीजें हैं जो मैं अपने आप को रिमाइंड करती हूँ, या सेल्फ टॉक है जिसके लिए दैट आई माई सेल्फ कैन डू इट विदाउट बीइंग डिपेंडेंट. And if it does not help, if you're still feeling vulnerable, reach out to a safe person. वो आपके family member हो सकते हैं, friends हो सकते हैं, colleagues हो सकते हैं, anybody जिनके साथ आप safe feel करें. And keep a list of these mental health professionals, या कुछ apps हैं, जैसे कि one of the apps is Calm Harm app, जो कि free में download कर सकते हैं, and that also helps you with these resources. काफी helpline numbers हैं जो शायद start में हमने share किया था.
reach out to them if you want, right? So this is something already structured and is with you if you need in crisis. Another one is managing the risk. The idea being कुछ रिस्क फैक्टर्स हमें ज्यादा वल्नरेबल बना देते हैं या ससेप्टेबल बना देते हैं, राइट? अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, इलनेस है, वो कॉज कर सकता है. इफ यू लूज अ फ्रेंड और देयर इज सम बुलिंग हैपनिंग, अब्यूज हैपनिंग अराउंड, if there's a death of someone that is close to you, sudden problems आ जाते हैं, right? So that could be your risk factors, and the idea is to reduce these risk factors. And then we're talking about these protective factors जो आपको सेफ रखते हैं, जैसे कि आपके सोशल सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, आपकी खुद की कोपिंग हो सकती है, रिमाइंडर्स कि आप अचीव भी कर रहे हैं चीजें, लुकिंग थिंग्स इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, राइट? सो द आइडिया इज कि हम जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं उनको इंक्रीज करें. The next green flag is hope kit. This is also a very beautiful tool जो आप virtually भी maintain कर सकते हैं या फिर physically भी एक create कर सकते हैं. ये एक hope kit है. Hope सबके लिए different mean कर सकता है, but basically you're including a safety plan. कोई ऐसे mementos है, कोई photographs हैं जो आपको hopeful feel कराती है. Gratitude list I think बहुत important है because it helps you also count जो आपके पास है versus जो नहीं है इस situation में. कोई इंस्पायरिंग कोट्स हो या affirmations हो, वो भी बहुत काम कर या फिर कोई लेटर टू योर सेल्फ अगर आप लिख के छोड़ना चाहें एज अ रिमाइंडर. सर्टेन रीजंस टू लिव, राइट? अगर आपके कोई ड्रीम्स हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं एवरी डे, या फिर कोई डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स या सूदिंग टेक्निक्स, ताकि अगर हमें उस समय याद ना आए. सो दिस आवर होप किट हैज एवरीथिंग, राइट? सो दैट्स द होल आइडिया. सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एज वेल. बहुत वैरायटी में हम अपना ध्यान रख सकते हैं. आई थिंक एज मच एज आई डू बिलीव कि हमारा इमीडिएट सराउंडिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एट द सेम टाइम आई थिंक आई ऑल्सो वांट टू एनकरेज कि हमारा खुद का ध्यान रखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई थिंक इट्स द सेम कॉन्सेप्ट जब हम फ्लाई करते हैं और हमें बोलते हैं कि इमरजेंसी के दौरान अगर ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप होते हैं तो पहले खुद अपना मास्क पहने फिर दूसरों को पहनाए. आई थिंक इट्स द सेम कॉन्सेप्ट. ऑल्सो ये उम्मीद करना कि जब इमरजेंसी आएगी तो कोई और मुझे पहले मास्क पहनाएगा is also sort of unfair, right? Kyunki maybe the other person is not in that capacity. It's just unfair, right? So idea of self-care is khud wo mask pehne pehle and then deal with things, right? So it actually fills our empty cup, jaise bolte hain, right? So physical component बहुत beautifully काम करता है. Regular exercise, even if not every day, at least 3 days a week can be very empowering. फिजिकल एक्टिविटी, रिसर्च कहती है आप चाहें या ना चाहें, जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, योगा, जुम्बा, एनीथिंग, राइट? आप चाहें या ना चाहें आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन रिलीज करता है, जिससे आपको बेटर फील होता है. और आपकी डीप ब्रीदिंग ऑल्सो रिड्यूसेस द कॉर्टिसोल लेवल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है. तो the day जब आपको बहुत लो लग रहा है is actually the day where you should really pick yourself up and 15 मिनट वर्कआउट कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं. You would see how your body impacts your mind, right? So that could be one of the ways. Emotional well-being बहुत important है. Be aware मुझे क्या feel हो रहा है, acknowledging that is crucial. Social, spiritual, बहुत important aspect, I think, gives us a lot of holistic perspective and a lot of faith and hope into living. And I think we will let Parampreet throw some light on that later. So basically self-care के बहुत सारे forms होते हैं. Explore it for yourself and engage in them daily. जैसे daily खाना खाते हैं, वैसे ही अपने आप को रिचार्ज करने के लिए डेली सेल्फ केयर करना पड़ता है, राइट? सो भले 15 मिनट्स निकालिए, बट डू इट इन द वे दैट मेक्स यू फील रिलैक्स्ड एंड बेटर. क्विकली वी विल ऑल्सो लुक एट लॉन्ग टर्म क्या कर सकते हैं. तो ये वाले क्राइसिस थे, राइट? ये इमीडिएट केयर चाहिए था. कुछ चीजें जो मैं डेली बेसिस पे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इज, फर्स्ट थिंग इज
जर्नलिंग, आई थिंक ये बहुत ब्यूटीफुली काम करती है बहुत सारे लोगों के साथ। आई थिंक ये पिक्चर डिपिक्ट करती है कि जर्नलिंग कितना इम्पैक्टफुल रह सकता है। और लॉट ऑफ टाइम्स शायद हमारे पास पॉसिबिलिटी ना हो कि हम किसी से बात कर पाए, राइट, तब लिख लेना, थॉट जर्नलिंग जैसे कहते हैं, आज के दिन में क्या हुआ, कैन रियली हेल्प अस, बिकॉज इट कैन help us not bottle up our thoughts and emotion, not become that pressure cooker that will just blast any moment, right? So this is a very good way to vent out and release what's going on for us. Next green flag is circle of influence या circle of control. बहुत important factor, and I think this is one technique that we do talk about a lot in therapy as well. So सर्कल ऑफ कंट्रोल क्या बताता है? सर्कल ऑफ कंट्रोल ये बताता है कि कुछ चीजें मेरे कंट्रोल में होंगी, बट कुछ चीजें अनफॉर्चुनेटली लाइफ में मेरे कंट्रोल के बाहर होगी। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब मैं सारी एनर्जी और टाइम उन चीजों पे लगा दूं जो मेरे कंट्रोल के बाहर है, राइट? एंड उन चीजों के बारे में मैं 1 घंटा सोच सकती हूँ, 1 दिन सोच सकती हूँ, 1 हफ्ता सोच सकती हूँ, 6 महीने सोच सकती हूँ, राइट? बट उनमें बदलाव आने के पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। इंस्टेड अगर हम उन चीजों पे रिफ्लेक्ट करें जो मेरे कंट्रोल में है, बेटर चेंज आएगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये सोचती हूँ मैं रिलेशनशिप में हूँ एंड देर आर सम प्रॉब्लम्स अराउंड इट, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, या सपोजिंग आई अप्लाई फॉर अ जॉब एंड बी लाइक मुझे वो जॉब क्यों नहीं मिली, राइट? वो चीजें शायद फैक्टर्स मेरे बाहर हैं, बट मेरे फैक्टर्स में क्या है कि मैं अपनी जो भी परेशानियां हैं उनको कम्युनिकेट करूं रिलेशनशिप में, शायद वो मेरे सर्कल ऑफ कंट्रोल के अंदर है। मैं जॉब को ढूंढूं और अप्लाई करूं, वो मेरे कंट्रोल में है, राइट? बट आगे वाला कितना समझता है, कितना रिस्पॉन्ड करता है, रिसिप्रोकेट करता है, वो हमारे सर्कल ऑफ कंट्रोल के बाहर रहता है। जितनी क्लैरिटी हमें रहेगी इसके बारे में हर सिचुएशन में, वो हमें बहुत मदद कर सकती है, राइट? सो एनी सिचुएशन जब आपको लगे ओवरवेलमिंग, सिट डाउन विथ योरसेल्फ, मेक दिस सर्कल, 2 सर्कल बनाइए, एक अंदर जो आपके कंट्रोल में है इस परिस्थिति में, और कुछ चीजें जो मेरे कंट्रोल के कंप्लीटली बाहर है, राइट? वो आपको सडनली ओवर थिंकिंग से भी आप देखेंगे डिफरेंट तरीके से आप नोटिस करेंगे। काफी बार ओवर थिंकिंग हम उनके बारे उस चीज के बारे में सोचते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, किसी ने कुछ बोल दिया है या कोई पर्टिकुलरली तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली हम दूसरों का बिहेवियर नहीं बदल सकते हैं, राइट? सो इट हेल्प्स अस टू ब्रिंग बैक थिंग्स जो हमारे कंट्रोल में, लोकस ऑफ कंट्रोल अंदर शिफ्ट करते हैं। Another green flag can be reframing. This is one of the very impactful techniques from cognitive behavioral therapy. आइडिया यही है कि एक सिचुएशन को हम अलग पर्सपेक्टिव से हमारे ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं सोचने के लिए, राइट? जैसे आपने एग्जाम्पल सुना होगा, जब हम आधा भरा ग्लास पानी का दिखाते हैं तो कुछ लोगों के लिए वो आधा खाली होता है, बट कुछ लोगों के लिए वो आधा पानी से भरा हो सकता है, राइट? सो द what you're trying to do is shift or reframe, shift the focus. तो हम बेसिकली ये कैसे करते हैं? हमारी सिचुएशन के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं, चैलेंज करते हैं हमारे थॉट्स को, और एविडेंस मांगते हैं कि अगर मैं ये सोच रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मैं कहीं पार्टी में गई और मुझे मेरी फ्रेंड मिली, मैंने उसे हाय बोला बट उसने मुझे जवाब नहीं दिया, तो शी हेट्स मी। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई थॉट प्रोसेस। नाउ लेट्स ट्राई टू reframe this. Let's try to challenge our thought, right? क्या इसके और भी कोई इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं? क्या हो सकता है कि उन्होंने शायद हमें देखा ही ना हो? क्या हो सकता है कि शायद अगर उन्होंने नहीं भी बोला हो, उसका मतलब ये नहीं है कि द फ्रेंडशिप डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? सो जो हम ये शिफ्ट कर रहे हैं हमारी थिंकिंग में, या कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस जिसे हम बोलते हैं, उसको टैप करने के लिए रीफ्रेमिंग बहुत पावरफुल टूल है। The next green flag is media literacy. I think I cannot highlight the importance enough. बहुत जरूरी है कि हम जो भी मीडिया पे देख रहे हैं, and this is for all the age groups actually, क्योंकि आजकल even a 4 or 5 year old person, child uses the phone across all the youth to adult and
till 65, 70, 80, I don't know, right? So हम सब equally exposed है मीडिया से. बहुत जरूरी है कि हम पॉज करके रिफ्लेक्ट करें कि जो मैं देख रही हूँ या देख रहा हूँ वो सच है या नहीं, राइट? क्योंकि काफी बार बहुत स्क्यूड इंफॉर्मेशन हो सकती है, इनकम्प्लीट ट्रूथ हो सकता है. हम अपने अच्छे दिन दिखाते हैं, हम हमारी स्ट्रगल्स नहीं दिखाते हैं, राइट? सो वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ आवर मीडिया. मीडिया का क्रूशल रोल सुसाइड में प्रिवेंशन में इसलिए भी है क्योंकि समथिंग कॉल्ड बर्डर इफेक्ट या फिर कॉपी कैट सुसाइड, जहाँ पे जब हम मीडिया अच्छे से सेंसिटिवली रिपोर्ट नहीं करते हैं केसेस ऑफ सुसाइड, जहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी फेमस एक्टर या एक्ट्रेस अगर डाई करते हैं सुसाइड से, तो उसका इफेक्ट एक वर्दर इफेक्ट और एक कॉपी कैट काइंड ऑफ एन इफेक्ट दिखता है सोसाइटी पर, राइट? सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ interpreting या glorifying the idea of dying. Recently, couple of, I think, years ago, there was a series called 13 Reasons Why. And वो एक टीनेज के रिलेटेड सीरीज था. एंड उसके बाद से उस सीरीज को देख के बहुत सारे टीनेजर्स ने हैड डाइड बाय सुसाइड. एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू इंडिकेट कि मीडिया कैन, हम मीडिया से चाहे या ना चाहे ऑब्जर्वेशन लर्निंग करते हैं या वाइकेरियस लर्निंग करते हैं. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जब हम उन चीजों को प्रैक्टिस करें. उससे पहले एक बार पॉज होके सोचें कि हम क्या सच मान रहे हैं और क्या झूठ है, राइट? बिल्डिंग अ सपोर्ट सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारे रिलेशनशिप्स हमें, हमारे लिए एक वो ट्रैम्पोलिन है जहां अगर हम गिरते हैं तो हम बेटर बाउंस बैक हो सकते हैं. तो रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना, फ्रेंड से टच में रहना, हॉबीज ऐसे एक्सप्लोर करना जहाँ से लाइक माइंडेड पीपल से कनेक्ट हो, ये हमें बहुत हेल्प कर सकता है. साथ साथ अपने, नॉट जस्ट रिलेशनशिप दूसरों के साथ, बट अपने साथ रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है. वही रिस्पेक्ट, वही ट्रस्ट, वही केयर, कंपैशन, टाइम हमें अपने साथ भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए या अपने में लगाना चाहिए. मीनिंगफुल लाइफ इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ आजकल का रूटीन हैज बिकम वेरी ऑटोमेटेड, राइट? वी फॉलो अ रूटीन एंड हम कभी कभी, हमें याद भी नहीं रहता है, हमें लगता है ओ हमने खाना खा लिया क्या, राइट? वी नॉट प्रेजेंट इन द मोमेंट. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी बिकम मोर माइंडफुल, right? And also find ki what are these things that I want to do in life. What is something that I want to achieve, right? Like they say, find your ikigai, right? अपने लिए short term और long term goals हम create कर सकते हैं ताकि we feel more directed, right? We have some direction and purpose in our lives. And I think towards the end, we're looking at practicing gratitude. क्यों जरूरी है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना? क्योंकि बेसिकली हमारा ब्रेन बहुत स्ट्रांग होता है और रिसर्च कहती है कि अगर मैं 21 दिन कुछ चीजें पर्टिकुलर तरीके से सोचूं या कुछ चीजें करूं तो मेरा ब्रेन रीवायर होता है, राइट? सो अगर पिछले 21 दिनों तक मैंने अपने ब्रेन को ये सिखाया है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरे साथ सब बुरा है, मेरे पास कुछ नहीं है, सो आवर ब्रेन स्टार्ट्स बिलीविंग दैट, राइट? बट अगेन अगर मैं सोने से पहले या when I wake up, count 3 blessings that I have, the things that happened good for me, या कुछ act of kindness करूँ, that or maybe create a jar or a pot जहाँ पे आप gratitude लिख सकते हैं. Use these, there are certain applications जहाँ पे आपको even remind कराते हैं कि आप सोने से पहले प्लीज 4 चीजें गिनिए जो आज अच्छा रहा, राइट? So you can use these technology in our favor. There's also an app called B Zone, and I think वो बहुत beautifully हर घंटे for a minute एक म्यूजिक बजता है, and you can utilize that as a reminder to pause and count your blessings for that hour, right? So the idea is कि हमारे ब्रेन को हम retrain कर रहे हैं to pick things जो मेरे पास है. And once that brain is retrained like that, you will be surprised कि even in the most challenging situation, आपका brain फिर भी अच्छी चीजें pick करेगा वहां से. Like even if things don't go your way, your brain will actually say, but at least I learned this out of this, right? So वो तरीका हम सब train कर सकते हैं अपने brain को, and this could be one of the practice to do that.
And regardless to say, बहुत important है, at any point of time when you are trying all of this, if you still need help, don't feel shy to put your hand up to say मुझे help की जरूरत है. Reach out for a professional's help. Even अगर कोई और बोलता है कि उन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या they need help, don't shame them, don't say what a big deal, या फिर look at other people, उनकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, right? So the idea is अगर कोई पानी में डूब रहा है, it does not matter कि वो 17 फीट में डूब रहा हो या 70 फीट में. The idea वो डूब रहे हैं itself is too much for them, right? So let's not shame them, let's not avoid, let's not be indifferent, but instead हम नॉन जजमेंटल रह सकते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं, क्यूरियस रह सकते हैं, कंपैशनेटली पूछ सकते हैं एंड कनेक्ट कर सकते हैं एक प्रोफेशनल से. सो लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर नॉट, they do not define you, right? आपका आइडेंटिटी बियॉन्ड है उससे. इट इज समथिंग दैट यू मे एक्सपीरियंस एट सम पॉइंट. जैसे कि अगर आप बारिश में चलते हैं तो आप बारिश को एक्सपीरियंस करते हैं, आप खुद बारिश नहीं होते हैं, राइट? सो ये एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जो इवन नैरेटिव थेरेपी फॉलो करती है, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नलाइजिंग द प्रॉब्लम, जहाँ पे हम प्रॉब्लम को देखते हैं और उसका सोल्यूशन निकालते हैं rather than thinking मैं प्रॉब्लम, right? So I think with this perspective I would like to stop talking now, and I also want to highlight कि आज हमने ये देखा कि सुसाइड क्या होता है, क्या वार्निंग साइंस रहे हैं. हमने ये भी देखा कि मैं अपने आप को या किसी और को हेल्प कैसे कर सकता हूँ. इट्स मोर ऑफ अ क्योर वाला पर्सपेक्टिव, राइट? वी आर लुकिंग एट ये प्रॉब्लम हो चुकी है एंड इसका इंटरवेंशन क्या है. But let's switch to something from spiritual aspect, क्योंकि I strongly believe as a professional also and personally कि spirituality can be that preventive, a very empowering preventive factor, right? अगर क्या मैं ऐसी कोई चीज कर सकती हूँ प्रैक्टिस कि मैं इस पूरे प्रॉब्लम से या क्योरेशन से बच सकूं. Sorry, so over to you, Param Bhaiji, please share your thoughts about how we could use spirituality as that empowering component जो हमें actually preventive तरीके से मदद कर सकती है. ओम शांति ज्योति सिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन. एंड काफी सारी चीजें मैंने भी सीखी हैं आज, एंड बहुत मजा आया समझ करके, एंड बहुत सारे नोट्स भी लिए मैंने अपने लिए. एंड इट्स taken me back into my own life also, because I'm someone who has experienced and faced all these things in my life, and I've come out of it over a long period of time. जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि अभी 15 years to 25 to 29 years के गैप में we are very vulnerable actually, and especially teenage age में. And that's something which even I faced in my life, because I used to question a lot in my life कि life ऐसे क्यों है, why people are pulling each other down, why people are putting people down, मजाक क्यों उड़ाते हैं, especially when we are in our youth, as a child, and हम जब स्कूल जाते हैं तो bullying होना and बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाना, all those things which we have to face in our life, whether it's through a religious point of view, whether it's through your physical looks or whether it's through your financial status. ये सारी चीजें जब हमें फेस करनी पड़ती हैं, then a question comes that is my life worth it or not? And spirituality, काश मेरे पास में 15-20 years पहले होती, मेरे पास में वो ज्ञान होता, तो I wouldn't have taken that step. And I'm right in front of you because a voice told me not to take that step. So that was a voice which told me अभी आगे बहुत जीना है. But to be frank, I understand that suicide rate जो बढ़ रहा है, it is first starting with the depression, जो कि mental depression, mental state, जो आपने जैसे कहा कि it is first step is depression. And main thing spirituality depression को it completely defines it, it completely breaks it down कि कहाँ से start हो रहा है. And spirituality helps us to go back into one very important concept which all of us believe in, and that is karma. We all believe that karma is something which is going to affect our present. It has affected our past, and it's going to affect our future too. And what I have learned in Brahma Kumaris, first of all, is that thoughts itself are the first step of our karma. And depression जो हो रहा है, it all depends upon the quality of thoughts which we are creating on a daily basis. आपने जैसे शेयर किया था हमारे responses कैसे होते हैं,
चाहे वो सोशियो रिस्पॉन्सेज हों, चाहे कल्चरल रिस्पॉन्सेज हों, चाहे रिलीजियस रिस्पॉन्सेज हों, चाहे सोसाइटी से इफेक्ट हो रहे हों हमारे सारे रिस्पॉन्सेज, चाहे हमारी कम्युनिटी हो, चाहे कल्चर हो, चाहे हमारे कंट्री का लाइफस्टाइल हो, इट ऑल इज गेटिंग it is affecting us in some way or the other, whether we realize it or we don't realize it. And sometimes हमारे बहुत सारे norms होते हैं हमारी लाइफ में कि ये करो, ऐसा ना करो, वैसा मत करो. एंड हमने बहुत एक अच्छा सॉन्ग भी हमने सुना था, हमने पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा. So those kind of stigmas, those kind of pressures which everyone is dealing with, एंड देन हम अपने आप को जब प्लेस करते हैं इन दिस वर्ल्ड में कि मेरी पहचान क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, विद ऑल दीज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, विद रिलीजियस एस्पेक्ट्स, विद कल्चरल एस्पेक्ट्स, विद फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, वी ट्राइंग टू क्रिएट अ आइडेंटिटी इन आवर लाइफ. एंड जब वो आइडेंटिटी कहीं ना कहीं शैटर हो जाती है, देन डिप्रेशन के साइंस आने शुरू होते हैं. जब एक्सपेक्टेशंस शैटर हो जाती है हमारी अपनी लाइफ से, अपने आप से, या मैं उतना अच्छा नहीं रह पाऊंगा, मैं उतना अच्छा बच्चा या बेटा नहीं बन पाऊंगा, इतनी अच्छी बेटी नहीं बन पाऊंगी, इतनी अच्छी बहू नहीं बन पाऊंगी, इतना अच्छा मैं बिजनेसमैन नहीं बन पाऊंगा. जब अपने साथ ही हमारे इतने सारे जो अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि हमने क्रिएट किए होते हैं दुनिया को देख करके, एंड जैसे आपने बहुत अच्छा बोला कि सोशल मीडिया को भी देख करके आजकल हम बहुत सारी अपनी लाइफ को क्रिएट कर लेते हैं, अपने आप को डिफाइन करना शुरू करते हैं. अगर मैं ऐसा नहीं बन पाया तो मेरी कोई लाइफ में मेरी कोई इज्जत नहीं होगी, मेरी कोई वैल्यू नहीं होगी. एंड वी क्रिएट सो मेनी कंडीशंस फॉर आवरसेल्व्स व्हिच इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन टू आवरसेल्व्स, एंड स्पेशली यंगस्टर्स में ये बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल. youth में from the age of 15, when we realize कि okay, I'm a man, or I'm becoming a man, or I'm becoming a woman, या मैं एक girl या lady बन रही हूँ, and then we start identifying with the looks, with the kind of clothes which we wear, and हमारी society में हमें लोग कैसे बोलते हैं, मेरे parents are they coming from a middle class or a upper middle class, or they coming from a low income group. एंड हम जब उन चीजों के बेसिस पे अपना डिफाइन करते हैं अपने आप को, चाहे हमारे ग्रुप्स फ्रेंड्स जो सर्कल बन रहा है उनके बेसिस पे बन रहा हो, there is so much of competition, confusion, and non-clarity about self-identity, which is leading to these first steps of depression and then onwards towards suicide. So spirituality हमें help करती है to define ourselves out of all these external aspects. तो चाहे मेरी looks जैसे भी हों, we have seen Mahatma Gandhi ji, we have seen Oprah Winfrey. They were not all about looks. There are so many examples in these world जो कि लोग जहां पर बिल्कुल गरीबी से, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, गरीबी से, if you talk about looks, okay fine, physical looks छोड़ दो आप, but he was a handsome being instead of a handsome human. So we have to transition from this looks part जो कि बहुत ही ज्यादा teenagers में आता है, ये एक misconception आता है कि मेरी looks is everything, the kind of clothes which I wear is everything, the kind of car, the kind of house, the kind of money which my parents have defines me, and these definitions are somewhere which are leading us to a lot of depression. And ये चीजों को हमें spirituality help करती है define करने के लिए कि these things are not the primary things. These are secondary things. The first thing is I have to learn as per karma to tell myself on a daily basis that I am a sweet, powerful being. First of all, I am a very happy being, and I'm a grateful being first of all. And then हाँ कोई बोले तो आप सुंदर दिखते हो, आप handsome दिखते हो, beautiful, those are very secondary things because they are always transitioning. कोई 65 ईयर्स में तो आपको 100% नहीं बोल सकता कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हो, बहुत हैंडसम दिख रहे हो, एंड 80-90s में जाकर के वो चीजें कम हो जाती है. वी ऑल नो वेरी वेल. एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं बहुत सारे पेरेंट्स को, व्हेनेवर आई गो टू स्कूल्स एंड ऑल, आई टेल देम यू हैव अ चाइल्ड, a girl child which is 10-15 years old, and then you have the same girl child which is around 35-40 years old. Is still a girl child for you, for a parent, right? So आपने एक girl child को example same scenario, बचपन में आपने उसको सिखाया कि you are very beautiful, you're so nice looking, and your eyes are so beautiful, your hair are so nice, your looks are so nice, you're so tall, and एक बच्चे को आपने, वही बच्चे को आपने सिखाया that you're very kind hearted, you're very resilient, you're very powerful, you have courage in everything, you're very disciplined. So what is going to go on with you for lifelong? कौन सी चीज आपके साथ में हमेशा जाएगी? बिकॉज एक चीज है जिसमें लुक्स हैं, वही बच्चा बड़ा होकर के वो डिप्रेस हो जाएगा, आज मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ, मेरा हस्बैंड कहीं और दिख रहा है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, यू सी.
है ना, as compared to someone who's courageous, who's disciplined, who's got so many talents because of those qualities, जो कि are going to live forever. सो हमारा जो आज बचपन में अगर 15 ईयर्स टू 29 ईयर्स में जो सुसाइड केसेस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा आइडेंटिटी क्लैश हो रही है, आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है बच्चों के अंदर। हमें पता ही नहीं हो रहा कि हमें किन चीजों से अपने आप को रिलेट करना है, ताकि हमें फील हो कि मैं ना अमीर हूं ना गरीब हूं, ना मैं हैंडसम ना ब्यूटीफुल हूं, जो चीजें आज पूरे हमें सोशल मीडिया पे सिखाई जा रही हैं, जिससे स्ट्रेस बढ़ रहा है। मैंने अपनी अच्छी फोटो डाली, मेरे को लाइक्स नहीं मिले, मे बी आई एम नॉट गुड लुकिंग, है ना, मेरे को कोई पसंद नहीं करता तो मैंने अपनी कलाइयां काटनी शुरू कर दी, है ना, दैट पर्सन डजंट लव मी, शी डजंट लव मी, ही डजंट लव मी, एंड आई एम सीइंग दीज केसेस व्हिच आर हैपनिंग अ लॉट। Students colleges may, if people don't accept you, people are cutting their hands. That's the very first stage of depression, very first stage of psychological problem issue. So these things are happening all because we are relating ourselves to a false identity being created by the materialistic world. एंड ये चीज अगर हर एक फैमिली में सीखी जाए, पेरेंट्स सीखें और पेरेंट्स सिखाएं, एंड दिस इज गोइंग टू ओनली कम व्हेन वी आर अ लिटिल स्पिरिचुअल, बिकॉज रिलीजियस कंटेक्स्ट में वी डोंट गेट टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, बट स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट में वी गेट टू लर्न दैट माई फिजिकल सेल्फ एंड माई स्पिरिचुअल सेल्फ आर टू डिफरेंट थिंग्स. एंड सुसाइड मीन्स आत्महत्या, राइट? बट टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है आत्मा की कभी हत्या होती नहीं है. तो हम वी आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स एस्केपिज्म ऑफ द फॉल्स रियलिटी विच वी हैव क्रिएटेड ऑन आवर ओन, और विच हैज बीन गिवन टू अस बाय द सोसाइटी, कि अगर आपका पैकेज इतना नहीं होगा, यू आर अ फेलियर. अगर आपके लुक्स अच्छे नहीं होंगे, यू आर अ फेलियर. अगर आपकी गाड़ी अच्छी नहीं होगी, देन यू आर नॉट गुड इनफ. सो दीज आर सर्टन थिंग्स विच वी हैव लर्नड, एंड जिस कारण से वी आर क्रिएटिंग अ स्ट्रेस इन आवर लाइफ. But what if we move towards spirituality, and spirituality teaches us that all these things are not we. These things don't define us. आप सोचो कितना स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, कितना हल्कापन आना शुरू हो जाएगा, and we can restart our life. Like you said very beautifully, that suicide is not the end. It is the beginning to a new start. That means, okay, I'm ending a past life in which I was always thinking negative about myself. I was thinking negative about myself on the basis of my physical aspects, physical attainments, physical achievements. But now, let me turn into a spiritual aspect where I start talking to the real me. एंड बहुत सारे लोग जो कि डिप्रेशन या दे आर रीचिंग सुसाइड, दे हैव एक्चुअली नॉट लर्नड हाउ टू टॉक टू देमसेल्व्स. आपने बोला सेल्फ केयर, सेल्फ लव. हाउ डू आई टॉक टू माई सेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थेरेपी, एंड दैट्स व्हाट वी लर्न इन स्पिरिचुअलिटी, दैट्स व्हाट वी लर्न इन ब्रह्म कुमारीज. हमारा फर्स्ट लेसन ही होता है कि अपने आप से प्यार से बात करना सीखो, पहले अपने आप को प्यार करना सीखो पहले. और हमें बचपन से क्या सिखाया गया है? अच्छे कपड़े पहने तो अपने आप को किसी ने हैंडसम बोला या गुड लुकिंग बोला, दैट इज सेल्फ लव. नो, दैट इज सॉरी नॉट सेल्फ लव, इट इज टेम्परेरी लव. हाँ, एक तरीके से सुपरफिशियल लव है. मैं एक बैग खरीद लूं और बैग को ही मैं बोलूं बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, कब तक बोलते रहोगे आप? एक दिन वो पुराना हो जाएगा. उसी तरीके से ये भी किसी दिन पुराना हो जाएगा शरीर. कब तक बोलते रहोगे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है? तो जो सच्ची चीज जो ब्यूटीफुल है वो आत्मा अंदर है, एंड वो स्पिरिट जो अंदर है उसको हम ब्यूटीफुल कह सकते हैं. लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना, जिन्होंने जिनके हाथ पैर नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हिमालय चढ़ के दिखाया, फिर भी उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स करके दिखाई हैं. ऐसे बहुत सारे लोग हैं. निकोलस जेम्स, ही इज एन ऑस्ट्रेलियन, विदाउट हैंड्स, विदाउट लेग्स, एंड ही इज अचीव्ड सो मेनी थिंग्स इन हिज लाइफ. सो ऐसे बहुत सारे पीपल हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका फिजिकली आप देखो तो कुछ भी नहीं उनके पास में, लेकिन ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, ऑन अ स्पिरिट लेवल, ऑन अ थॉट लेवल, दे नेवर गेव अप. Otherwise, they had more reasons for many of us who have got hands and legs to go for suicide. जिसके पास हाथ पैर नहीं है, उसके पास में तो जॉब की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप मेंटेन करने की प्रॉब्लम. तो ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस हो सकते हैं हमारी लाइफ में, दैट ओके, आई वांट टू गिव अप ऑन माय लाइफ. In my own personal life also, I realized when I was during the age of, I think, Pune शहर में रहते हुए, when I was in Mumbai, around Mumbai and Pune all, so I had issues with myself, with my physical features on a religious point of view. मजाक उड़ाया जाता था बहुत ज्यादा, because I had long hair, coming from a Sikh family. Second thing was looks के बारे में बातें होती थी. Third thing was पैसों की बातें होती थी. मेरे पापा के पास में इतना है, मेरे फैमिली के पास में इतना है.
फोर्थ थिंग वाज अचीवमेंट प्रेशर, पीयर प्रेशर। उसका बच्चा क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, ये ऑल दीज थिंग्स हैड टू बी फेस्ड, एंड आई थिंक दैट इज इंक्रीज मल्टी फोल्ड टुडे। आज बहुत ज्यादा हो गया है। सो इफ आई कुड थिंक ऑफ टेकिंग दैट ड्रास्टिक स्टेप कि भैया खा लो और चले जाओ, इमेजिन समवन हु इज गोइंग थ्रू इट राइट नाउ, व्हाट वुड दैट पर्सन बी गोइंग थ्रू राइट नाउ? आई अंडरस्टैंड दैट मच। आजकल ऐसे पीयर प्रेशर्स पड़ने शुरू हो गए हैं कि रिसेंटली इन अ सिटी लाइक दार्जिलिंग वी एक्सपीरियंस अ केस ऑफ 15-year-old चाइल्ड फ्रॉम अ स्कूल, जो कि रैफल टिकट के प्रेशर में आकर के स्कूल ने उसको वापस भेज दिया घर कि आपने रैफल टिकट्स पूरी नहीं करी हैं, एंड दैट चाइल्ड टुक हिज लाइफ। सो हम, जैसे यू वर सेइंग वेरी नाइसली दैट वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट किसी की फीलिंग्स क्या चल रही हैं। हमें अरे कुछ नहीं है, स्कूल से बाहर निकलने कोई बड़ी बात नहीं है, चलो कल चले जाएगा वापस। नहीं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वी नेवर नो व्हाट दैट चाइल्ड इज गोइंग थ्रू, एंड दैट्स वेयर इंटर पेरेंटल चाइल्ड रिलेशनशिप इज वेरी वेरी क्रूशियल, जो कि आज बहुत ही लो लेवल पर है। So instead of spiritual talking in the house, we generally are talking about what? We generally talking about neighbors. We're talking about family issues. We're talking about बाहर वाले क्या कर रहे हैं. We're talking about neighbors क्या कर रहे हैं. We're talking about दुनिया में क्या चल रहा है. We're talking about gadgets क्या नए आ गए हैं, क्या चीज नहीं खरीदनी चाहिए, क्या खाना चाहिए. That is all superficial talk which we are doing every day. But हमारे emotions जो हैं, जो कि हम शेयर करना चाहते हैं, वो शेयर होते नहीं हैं. And the first reason for that is why? Because comparison, competition, कहीं ना कहीं दबाव बहुत ज्यादा, कि बच्चे पेरेंट्स के साथ में बोलना ही छोड़ देते हैं, कि अपने आप को एक्सप्रेस करना ही छोड़ देते हैं, एंड दैट इज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन यंगस्टर्स, एंड दैट इज लीडिंग टू मुझे कोई जानता नहीं, मुझे कोई मानता नहीं, आई एम फीलिंग लोनली, इज बेटर नॉट टू लिव दिस लाइफ. So that loneliness is coming where? This is something which sister you had spoken about, loneliness. 15 years, 29 years के बच्चों को loneliness feel हो रही है. Why is it there? Family होते हुए lonely feel करना. So that's why spirituality teaches the whole family to first connect with the self. पहले अपने आप को प्यार करना सीखो, so that हम बच्चों को प्यार दे पाए. And we generally think कि बच्चों को प्यार देना मतलब कुछ कपड़े खरीद लेना, कोई गिफ्ट खरीद देना, कोई अच्छी गाड़ी खरीद देना, या अच्छी जगह पर खिलाने के लिए ले जाना, पार्टी में ले जाना, बच्चों के बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर देना. एंड दैट इज एन एक्सटर्नल, अगेन वी आर गोइंग टुवर्ड्स एक्सटर्नल, एंड वी से कि हमने बच्चे के लिए इतना किया लेकिन फिर भी उसने ऐसे कर दिया. हमने इतना किया लेकिन हमने स्पिरिचुअल लेवल पे कितना किया? हमने फिजिकल लेवल पे एज अ पेरेंट्स यू आर डन राइट. इट्स नॉट कि आपने कुछ गलत किया है, आपने हर चीज ठीक करी है, आपने फिजिकल मीन्स दी हैं, लेकिन स्पिरिचुअल मीन्स, इमोशनल मीन्स जो नीड्स थी वो कहीं ना कहीं रह गई. एंड मेन चीज फॉर पेरेंट्स, बच्चा पैदा करना मतलब ये नहीं कि अब मैंने एक प्रोडक्ट पैदा किया है, चलो बाहर मेरे को अब इसके प्रॉफिट्स लेके आओ जरा. तो इट्स नॉट लाइक अ फैक्ट्री कि भैया आपने कोई चीज प्रोडक्ट पैदा की है, उसको अब सेल्स में डाल दिया, उसके अब मल्टी मिलियंस आने शुरू हो जाएंगे. इट इज नॉट अ फैक्ट्री, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट विच यू हैव क्रिएटेड. इट इज अ सोल, इट इज एन एनर्जी, इट इज अ फीलिंग, इमोशनल बीइंग जो उसके अंदर है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सेम थिंग गोज फॉर रिलेशनशिप्स. शादी कर लेना मतलब ये बात नहीं होगी कि हाँ मैंने पत्नी को इतना प्रोवाइड कर दिया, या पत्नी ने पति के लिए इतना कुछ कर दिया, एंड दैट्स इट. एंड आज दरारें बहुत ज्यादा आ रही हैं रिलेशनशिप्स में, हस्बैंड वाइफ के एंड डिवोर्स केसेस के कारण भी बहुत ज्यादा लोग स्ट्रेस में आ चुके हैं. इतना भी हमने सुना है कि आज सुसाइड की बात तो छोड़ दो, आज मर्डर की बातें भी आ जाती हैं, कि पेरेंट्स आर एक्चुअली रेडी टू, इवन अ फादर इज रेडी टू किल द वाइफ एंड द चाइल्ड सो दैट उसके ऊपर बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाए. इट्स रीच टू दैट लेवल. हम इतना भी सुनने में आया था, रिसेंटली न्यूज वाज देयर कि एक फैमिली ने डिसाइड किया एक बच्चे को सेल कर देते हैं, उससे जो पैसा आएगा उससे आईफोन खरीद लेंगे. इमेजिन द काइंड ऑफ स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विच इज देयर. आप सुसाइड की बात, तो हम सुसाइड से भी ऊपर चले चुके हैं कि एक सुसाइड तो हो गया, चलो बच्चा चला गया, लेकिन एक बच्चे को एक फोन से एक्सचेंज करके उसको हमेशा के लिए दूर कर दिया. So that is a emotional, stressful shock which a being will go throughout life. So my most important thing on a spiritual basis, which I was going to share with you, कुछ और points हैं जो कि आपने बहुत important बोले थे, कि जो चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है. एंड स्पिरिचुअलिटी टीचेस अ लॉट ऑफ थिंग्स. हमें सिखा देती है कि हम हैं कौन, हमारी कैपेसिटी कितनी, हमारी कैपेबिलिटी कितनी है. एंड उसके बावजूद सब कुछ करते हुए अगर मुझे जॉब नहीं मिली, अगर मुझे कोई इंटरव्यू करके सब कुछ नहीं मिला, अगर मेरा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ, सो दैट डजंट डिफाइन मी.
And that is the first thing which we learn in spirituality. That doesn't define me. Success is not money. Success is not another job. Success is not another promotion. इससे जब हम डिटैच हो जाते हैं तब हमारे अंदर डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीजें कम हो जाती हैं. इमेजिन योरसेल्फ, एक भरी हुई बोट अगर जारी हो तूफान में, है ना, पूरी फुल ओवरलोडेड बोट जारी हो और एक सेमी लोडेड बोट जारी हो तूफान में, कौन सी डूबेगी पहले? भरी वाली डूबेगी, राइट? तो कौन डूब जाता है? जो इंसान ओवरलोडेड होता है अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रख करके, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस अपने साथ में रख करके कि हमारे ऊपर कितना लोड है, मुझे अपने को अप्रूव करना है, मुझे अपने आप को ही ठीक करना है, मुझे आगे दिखाना है, सक्सेसफुल होकर दिखाना है. वो स्ट्रेस ओवरलोडेड बोट है. एंड स्पिरिचुअलिटी हमें हेल्प करती है कि वी लेट डाउन ऑल दीज फॉल्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ, जो कि या तो हमें दुनिया से सिखाई हैं, जो कि हमें या तो हम फैमिली से सीख रहे हैं या तो हम कहीं ना कहीं से सीख रहे हैं, है ना. कभी कभी फैमिली से भी प्रेशर आ जाते हैं हमें कि हमारे जो परदादा थे वो तो डॉक्टर थे, तुम लोग क्या बन के दिखाओगे? हम तो फलाने महाराजाओं के घर से हैं, तुम तो कैसे निकम्मे पैदा हुए हो? वी गेट टू हियर ऑल दीज थिंग्स एंड दीज आर लीडिंग टू अ लॉट ऑफ इश्यूज इन द फैमिली. बट स्पिरिचुअलिटी टीचेस अस कि इन चीजों से जो हमने अपने आप को अटैच कर दिया, हम फलाने फैमिली के, हम फलाने जात के, हम फलाने ये हैं, वी स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स अस टू मूव आउट ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट्स and see each other as a being for who they are. So बच्चों के ऊपर स्ट्रेस डालना कि नहीं तुम डॉक्टर फैमिली से, तुम्हें डॉक्टर ही बन के दिखाना है, एंड जब वो फेल हो जाए उसमें एग्जाम में, मैनी IITians जो कि एस्पायरिंग IITians है, मैनी मेडिकल ऑफिसर्स हैव आल्सो, जो कि एस्पायरिंग मेडिकल ऑफिसर्स थे, दे हैव गॉन थ्रू सुसाइड, दे हैव टेकन दैट स्टेप. व्हाई? ये क्वेश्चन हमें पूछना है. इज दैट सक्सेस ऑफ माय चाइल्ड गोइंग टू डिफाइन मी? फर्स्ट क्वेश्चन स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है. डज दैट डिफाइन मी? डज दैट डिफाइन माय फैमिली? एंड ये चीजें हमें क्वेश्चन हेल्प करते हैं ताकि वी टेक आवर लाइफ इनटू आवर ओन हैंड्स, इन द सेंस ऑफ हम अपनी आत्मा की जो ताकत है, जो आत्मा के जो कर्मा है, आत्मा की जो भावना है, उनको हम अपने हाथ में वापस लें, एज कंपेयर टू द वर्ल्ड कंट्रोलिंग अस, मीडिया कंट्रोलिंग अस, पीपल अराउंड अस कंट्रोलिंग अस. अरे मेरे बच्चा तो यहाँ पे पहुंच गए, तुम्हारे बच्चा अभी तक वहीं पर है. Don't let that control you. Don't let that affect your child's mental psychology. And this is where, as a parent, as a family member, as a child, we have to know how to filter down information. कि क्या right information है, क्या wrong information है. एंड ब्रह्मा कुमारी हमें हेल्प करती है ये डिफाइन करने में, ताकि हमारे अंदर शक्ति आए टू फेस सिचुएशंस. हमें पता ही नहीं है कि ये इंसान ने मेरे बारे में ये बोल दिया, कि मेरे फिजिकल फीचर्स के ऊपर बोल दिया, ये मेरे प्रेजेंट सैलरी पैकेज के ऊपर बोल दिया, एंड अगर मैंने इसके साथ में अपने आप को अटैच किया हुआ कि हाँ मेरी सैलरी पैकेज है इतना है और मेरा जो फ्रेंड है वो आज मेरे से कहीं ऊपर आगे पहुंच गया है और मैं यहीं कहीं रह गया हूँ, दैट डिफाइंस मी, तो मेरे को उससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा. बट स्पिरिचुअलिटी अगर हम सीखते हैं कि दैट डजंट डिफाइन मी, तो रोटी दाल भात इज मोर देन इनफ. आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव, बट विद दैट हैप्पीनेस आई विल प्रोग्रेस अहेड फॉर श्योर. It doesn't mean कि मैं I'm happy, I'm content, so I'm stuck over here, I'll never move ahead. तो अगर मैं content हूँ, अगर मैं happy हूँ at the present moment, that's what spirituality teaches us, then I can move ahead in life without comparing with others. So if my life is all about detaching myself from these worldly things जो कि सिखाई जाती है हमें, तुम्हारा सैलरी पैकेज, तुम्हारे लुक्स, तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा साइज ऑफ बंगला, अगर इन चीजों से अगर हम डिटैच कर लेते हैं अपने आप को विद स्पिरिचुअलिटी, व्हाइल लिविंग विद ऑल दोस थिंग्स, बाय द वे डिटैचमेंट डजंट मीन कि यू थ्रो अवे ऑल दोस थिंग्स एंड बिकम अ साधु, व्हाइल लिविंग विद ऑल दोस थिंग्स बट येट डिटैच्ड, सो दैट nobody's comment affects us, then I have the power to tolerate, then I have the power to face, and then I have the power to decide कि मेरे लिए ठीक क्या है. और जब ये पावर्स हमारे अंदर नहीं होती हैं, देन वी टेक द पावर इन अ हैंड टू लीव दिस बॉडी, जिसको हम आत्महत्या कहते हैं. लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, आत्महत्या कुछ चीज होती नहीं है. हम अपने शरीर को तो छोड़ देते हैं, बट वो जो सैडनेस जो होती है आत्मा के साथ में, वो अगले जन्म में अगर आप मानते हैं वो जाती है हमारे साथ में. वो अनफुलफिल्ड जो थॉट्स होते हैं, वो फीलिंग्स होती हैं, वो हमारे साथ में नेक्स्ट लाइफ में भी जाती हैं, जिससे हम एस्केपिज्म जो कहते हैं, वी कैन नॉट एस्केप, which I also tried in my life. We cannot escape
बिकॉज एक अंतर की जो आत्मा है, जो अंदर आत्मा जो कहती है कि नहीं नहीं अभी और जीना है, एक सत्यता है, वो सत्यता बहुत झूठ के साथ में छुप चुकी है आज। और आज जो सुसाइड केसेस हो रहे हैं वो बहुत सारे फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के कारण से हो रहे हैं। एंड स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प यू टू आइडेंटिफाई विथ योर रियल सेल्फ कि हम रियली हैं कौन। और ये जो बाहर का दुनियावी जो चीजें बनी हुई हैं, माई रिलेशनशिप वॉज नॉट सक्सेसफुल, मेरे फैमिली ब्रेक हो चुकी है, या मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, या मेरे फाइनेंसेस ठीक नहीं है, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम यूजलेस, आई एम वर्थलेस, ये जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं ऑन अ डेली बेसिस बिकॉज ऑफ व्हाट वी एक्सपीरियंस फ्रॉम द वर्ल्ड आउट, क्योंकि दुनिया उन चीजों को ज्यादा महत्व देती है। एंड दैट्स वेयर द रेट्स ऑफ सुसाइड्स हैव इंक्रीज्ड, एंड वी हैव टू डिटैच आवरसेल्व्स ऑन अ स्पिरिचुअल बेसिस फ्रॉम दीज फॉल्स आइडेंटिटीज, सो दैट हमारे अंदर वो पावर वापस आ जाए। आत्महत्या क्यों हो? आत्मा बल, आत्मशक्ति जिसको कहते हैं, आत्मविश्वास पड़े, है ना? तो आत्मविश्वास कहते हैं, आत्मबल कहते हैं, आत्मशक्ति कहते हैं, ना कि हम कहते हैं धन विश्वास, ना कहते हैं हम लुक्स का विश्वास, ना हम कहते हैं हमारे रिलेशनशिप्स का विश्वास, हम कहते हैं आत्मविश्वास। तो क्यों ना हम वो आत्मविश्वास में वापस आए। और जो हमने धन के ऊपर विश्वास डाल दिया है जिस कारण से सुसाइड हो रहे हैं, कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं फैमिली को कैसे देखूंगा, या मेरे रिलेशनशिप्स टूट चुके हैं, मैं कैसे अपने आप में मुंह दिखाऊंगा अपने पेरेंट्स के सामने, मेरा रिलेशनशिप टूट गया। क्यों ना हम आत्मविश्वास के ऊपर डिपेंड करें, ना कि इन चीजों के ऊपर डिपेंड करें, ये सोशल स्टिग्मास के ऊपर डिपेंड करें। And I believe spirituality gives you a very good message about the complete world drama also। ये जो ड्रामा जो चल रहा है, इस ड्रामा में हर किसी का अपना अपना पार्ट है, हर किसी का अपना अपना रोल है, एंड दीज रोल्स आर वेरी ब्यूटिफुल। बट हमने अपने रोल्स को औरों के साथ में कंपेयर करके हमने अपने रोल्स को कहीं ना कहीं छुपा दिया है। यूनिक आइडेंटिटी है हमारी। सोल का मतलब ही क्या होता है कि सोल विद अ यूनिक लाइफ, वी आर ईच बीइंग विद अ यूनिक लाइफ। जैसे कि सिस्टर यहाँ बैठी है, उनकी लाइफ और मेरी लाइफ एक जैसी नहीं हो सकती है, पर मैं उनसे अगर कंपेयर करना शुरू कर दूं कि वो तो इतना अच्छा क्वालिफाइड है, मैं क्यों नहीं क्वालिफाइड हूँ, इफ आई डू दोज कंपैरिजंस आई विल बी ऑफ नो यूज, आई विल बी वर्थलेस, आई विल बी हेल्पलेस, एंड आई विल बी यूजलेस। But if I think of myself in spirituality that I'm a unique soul, मेरी एक unique identification है, unique मेरा purpose is life में, I have to not compare myself with anybody. I'm a unique actor. I'm the best of the best of the best in my own self. मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। And this is what we learn in Brahma Kumaris। हम अपने आप से प्यार से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, अपने आप को दिलासा देते हैं। And that is one of the way of coming out of depression, so that we don't even need to reach the level of suicide. And हमारा sister आज यही message रहेगा at the end, that suicide is not the answer। suicide अगर आपके मन में आ रहा है, so I would congratulate you because you are going to move towards a new life, by the way। That means you want to reinvent your life। So suicide is not the end, it's just the beginning। You can reinvent yourself because एक गेंद भी होती, बॉल जब तक वो नीचे नहीं गिरती है, जब तक जमीन के ऊपर, तब तक वो बाउंस बैक नहीं करती है। So if you are so low in your life, you are ready to actually bounce back in your life। So don't be fooled that low feeling means I'm good for nothing। जो लोग लो जाते हैं, जो लोग बहुत ही गिर जाते हैं इमोशनली, दे आर द वंस हु रियली अंडरस्टैंड इमोशंस वेरी वेल। यू आर गिफ्टेड एक्चुअली। you are able to recognize emotions, you're able to recognize feelings, जो कि बहुत सारे लोग आज numb बन चुके हैं because of wealth, because of looks, because of fame। They've become totally numb। And if you're going through a feeling of depression, if you're going through a feeling of suicide, I congratulate you because you are ready to bounce back। You're ready, you're just at that tipping point to bounce back and take help of spirituality, take help of God, take help of meditation to take that leap, take that bounce back। And Om Shanti with this. Thank you so much। Sister, any words which you'd like to express, and so that we can Sure. No, thank you for sharing the aspect about spirituality. And I think I do want to reiterate that, spirituality एक वो aspect है जहाँ से हमें वो faith और हमें एक bigger picture, एक holistic चीज देखने का एक मौका मिलता है। And thank you for sharing your thoughts। And thank you everybody जो अब तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं thank you इतनी so much for the yeah listeners। yeah for all the patience। And I just genuinely hope that आप अपना ध्यान रखें। And thank you once again Param Bhaiji for creating this space and this talk today।
And I just hope that, we were helpful, and there were a few thoughts that people were able to take away from this session. That's from my end. Thank you. Thank you so much, sister. And हमारे पास में कुछ comments भी आए हुए हैं. Thank you so much for sharing your comments also. And on YouTube also we have some comments from our viewers. Thank you so much for sharing your comments. And sister, आपके लिए भी यहाँ पर the beautiful comments for you also. Lovely session. Thank you. Thank you, sister. Thank you. I cannot see the YouTube comments, but thank you for. I'm glad that this was useful. Thank you. Yes, for sure, it's useful, and we'll be forwarding this to a certain couple of schools also. Really proud of you, sister Jyoti, and very proud of you, Jyoti Beta, Asha Mishra ji, Krishna Sharma ji, Om Prakash Sharma ji, proud of you, Beta. So all those comments are there for you, and many more to come. Oh, thank you. Thank you, everybody. Very warm. Thank you. Hanji. So we'll be sharing this complete session with all of you. And if you feel that this will be helpful for some kids in some schools, parents, teachers, please do share so that they can reach out to them at the right point, at the right time, because suicide, as we said, is the tipping point, is the time to actually move on to a next phase of life, a better phase of life. So with that point of view, with that thought, we leave you over here. Thanks for joining us. And Jyoti sister, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत वंडरफुल, एंड आप आगे ऐसे ही सेवाएं करते रहें एंड बहुतों की लाइफ चेंज करते रहें. आपने सेशन स्टार्ट होने से पहले मेरे साथ शेयर किया था कि किसी की लाइफ आपने चेंज करी. दैट बॉय वाज अबाउट टू रीच दैट स्टेज, बट देन यस, it's God's gift to you. He's gifted you with a lot of talent or a lot of qualities so that you can help many other souls out. Thank you so much for your very kind words. And thank you again. Yes, I would be more than happy to help in any way that I can. So thank you once again. Thank you everybody for very kind words. I think I see a couple of words also here on Zoom. So thank you. Very kind of you. Thank you so much. Thank you so much, Jyoti ji. Beautiful session from Rita Huja. Okay, sister. It's time to sign off now. Yes. Thank you. Have a good evening. Thank you. Thank you so much for joining this channel, Rajyoga Self-Healing Meditation. And we wish you can go towards a Brahma Kumari session. Go ahead, आप जिस भी सिटी से सुन रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी सेशन एक लीजिए एंड फिर अपने लाइफ में चेंजेस देखिए. आप अपने ही फैमिली मेंबर्स को और समझ पाएंगे अच्छी से एंड आपकी लाइफ भी बहुत बेटर होती जाएगी, क्योंकि सबसे पहले आप अपने आप को समझना शुरू करेंगे. ओम शांति.